video and audio assist. Both, okay. His video is not there, but I can. I don't know what is the issue with his video, but audio. Okay, let's start. Welcome to the all participants to the International Veterinary Webinar Series organized by Indian Veterinary Association. Today, with me, Dr. Yashpal sir, coordinator of IVA, Dr. Chirantan Kadian sir, president of IVA, Dr. Ajay Povarkar sir, Maharashtra State Veterinary Council president, and myself, Dr. Sontake Umesh Balaji, zonal secretary IVA. Welcome you all to the International Veterinary Webinar Series. Our today's speaker is Shri Sunil Mansingha ji. May I request Dr. Yashpal sir to coordinate all the webinar series for today's session. Please. Thank you very much, Dr. Sontake. Yes, sir. On behalf of IVA, I welcome all the participants from different parts of the country, as well as the President of Indian Veterinary Association, Dr. Kadian, the speaker of today's evening, Sri Sunil Mansingha ji, Ajay Povarkar, who is the President from Maharashtra, and everyone who is associated with this organization, including Dr. Mangesh, who is doing a great effort putting this webinar to everyone. And today we have taken a little more time in adjusting this seminar to everyone. So I will cut short, and because the theme today's seminar that has been chosen is one of the very important that should be discussed in very detail at every stage, every platform. It should be discussed because cattle population or cattle buffalo livestock is a backbone of Indian rural economy. 2/3 of the population of country is depending on the livelihood on the livestock. And luckily, what we could observe during the 2012 and 2019 census, a 4.6% enhancement of total stock has been seen. It is not very good for particularly for cattle, because it is nearly 1% that shows. But in case of the milch animal, it has enhanced a lot. So to go with more details about what needs to be done to have the more number of cattle to feed the rural economy, I request our for the speaker to be introduced by Dr. Ajay Povarkar. Please, Dr. Ajay Povarkar, please introduce our speaker. और हिंदी में बात करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा। यस जी, नमस्कार। नमस्कार। हेलो, Ajay Povarkar yes, sir. We can hear, sir. ऑनलाइन है? He is online. I am able to see him. ऑडियो चालू करिए। बस तो म्यूट नहीं है। और कर दिया। No, he is not mute. But I am not. कादियान जी को बताइए, कादियान जी परिचय करना। कादियान सर, आप सर का इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। आज के परिप्रेक्ष्य में जो ये इंटरनेशनल वेबिनार सीरीज भारतीय पशु चिकित्सा संघ द्वारा कंडक्ट की जा रही है, इसके तहत श्री सुनील मानसिंह जी, जो कि समन्वयक हैं, कोऑर्डिनेटर हैं विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापाड़ के, आज भारतवर्ष में सबसे उत्कृष्ट गौशाला है और उसके साथ एकमात्र ऐसी गौशाला है जिसमें घायल अपाहिज पशु कर लाया जाता है और फिर उसको स्वस्थ करके और बिना दुख के
ड्राई काउ मैनेजमेंट का परफेक्ट एग्जाम्पल है सुनील जी। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के सदस्य हैं सुनील जी। राष्ट्रीय भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के सदस्य हैं सुनील जी। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ऑन रिसर्च CSIR के सदस्य हैं सुनील जी। 5 काउ यूरिन और पंचगव्य पदार्थों के सहायक साथी हैं। मैं सुनील जी के संपर्क में जब आया, जब उत्कृष्ट कार्य देखा और जी हमारे क्षेत्र राज्य की पशु चिकित्सक परिषद के साथी रहे हैं, आज भी हैं। इंडियन वेटनरी एसोसिएशन, we are proud to be associated with Shri Sunil Mansinghka ji. He has got a very good pharmacy of products and originating from cow urine. And one of the best products I have with him is their soap, which has got a big curative or skin diseases. Regarding Sunil ji, he is a very popular expert on cow conservation, cow propagation, and that too specifically for indigenous breed. Our association with him is going to go a long way as a real step for forwarding, for propagating cow will be taken under his leadership. I welcome him to this webinar series and won't take much time. He's a great personality and everybody should follow him and visit the very active website of Go Vigyan Anusandhan Kendra, Devlapad, Nagpur. I request Shri Sunil Mansinghka to take over. सभी को नमस्कार। में बारिश होने की वजह से और अभी आज हम थोड़ा सबसे आग्रह रहेगा कि हमारे कुछ शुरुआत में थोड़ा सोनटक्के जी, बाकी के हमारे अन्य डॉक्टर साहब ने अंग्रेजी की शुरुआत की, तो सब लोग ये कि अंग्रेजी का थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा और हम लोग आज जो ज्यादा बात करेंगे गोवंश संदर्भ में, और इसमें भारतीय देशी गोवंश, ये कुछ चित्र आप सब जानते हैं, आपका विषय है। ये हमारी अलग अलग प्रजातियां, ये हमारे, ये देख लीजिए आप, अलग अलग जो प्रजातियां हैं जो हमारे डॉक्टर देवेंद्र सदाना जी ने पूरे देश का भ्रमण करके लाया है कि 65 ब्रीड्स, 65 प्रजातियां हैं, और ये 65 प्रजातियां हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। और इस समय जिस कालखंड से हम गुजर रहे हैं, क्योंकि जिस केंद्र का मैं कार्य देखता हूँ जो देवलापार ग्राम में है, नागपुर से जबलपुर रोड पर, तो पिछले 10 दिन में 4-5 बार हम जब गए तो ऐसा ध्यान में है कि 4-5 चक्कर में भी एक घंटे में 2500 श्रमिक अपने अपने गांव को जाते हुए, क्योंकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, इस तरफ का रास्ता हमारे देवलापार से जाता है, तो सामान्य अंदाज लगाया कि अभी तक 3-4 करोड़ ऐसा श्रमिक अपने घरों में पहुंचने की स्थिति में, यानी अलग अलग राज्यों में। तो ये श्रम शक्ति अब गांव में पहुंच गई है और बहुत आसानी से गई है। अब वो आतुर हैं कि गांव में उनको कुछ रोजगार, कुछ काम मिला जाए, और उसके लिए ये गोवंश, ये हमारा देशी गोवंश, ये वरदान हो सकता है। और सारे पशु वैज्ञानिक इस तरफ विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि इस महामारी ने बहुत कुछ सिखा दिया है
जैसे इतना बड़े विश्व में अभी तक इसका कोई निश्चित इलाज, कोई दिशा और आगे की स्थिति तो और ज्यादा संशयास्पद, कितने दिन ये समस्या चलेगी, क्या विश्व की स्थिति होगी। तो इस स्थिति में कम से कम भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी और सारे हमारे प्रमुख लोगों को ध्यान में आया कि आयुर्वेद ही इसका आधार है। ये सारी महामारियों के प्रकोप से बचने के लिए अब हमको हमारी समग्र चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की तरफ, और वो आयुर्वेद भारत ने दिया हुआ वरदान है। इसी तरह ये हमारा देशी गोवंश, क्योंकि वैश्विक समस्याओं का निदान भारत की सोच में है, भारत के चिंतन में है। हमने बताया कि ऋषि चिंतन के सानिध्य में भाई कुछ संदर्भ, क्योंकि हमने देर से शुरू किए तो मैं कुछ रेफरेंस के साथ, कुछ संदर्भ के साथ, क्योंकि हमारा सारा विषय जिस केंद्र से हम जुड़े हैं वो बहुत बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर रघुनाथ जी माशेलकर से लेकर, जैसे आज हम लोग डॉक्टर रामस्वरूप चौहान होंगे, तपन जी चक्रवर्ती होंगे, डॉक्टर चंद्रशेखर नोटियाल होंगे, और उनके साथ डॉक्टर हेमंत पुरोहित से लेकर बहुत सारी बड़ी श्रृंखला, जिनका समय होगा हम नाम लेंगे। एक पुस्तक मैं बता रहा हूँ, ये 1997 में इंजीनियर्स के माध्यम से इंजीनियरिंग द फ्यूचर फॉर ह्यूमन वेलबींग। अब इस पुस्तक ने एक संदर्भ में लिखा, आपको बहुत महत्व का है, सारे पशु वैज्ञानिक के लिए ज्यादा महत्व का है। इन्होंने गोवंश के बारे में लिखा है, आइडियल केमिकल प्लांट। हमारी सोच थोड़ी अलग है, लेकिन इन्होंने इसका संदर्भ एक दृष्टि से ठीक दिया है। कन्वर्ट्स एबंडेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज इनटू ए प्रोडक्ट्स दैट ह्यूमंस वैल्यू, smaller than a car, mobile so that it could search out its own inputs, capable of maintaining temperature necessary for its reactions within narrow bounds, able to automatically heal most system failures, would build replicas of itself after its wear out, and it would do all of with little supervision। यानी गोवंश के बारे में जो चिंतन, ये सारे वैज्ञानिकों की कॉन्फ्रेंस थी, इसमें डॉक्टर माशेलकर से लेकर ये 1997 में हुई, और ये जो लिखा है ये डॉक्टर रॉबर्टसन उन्होंने लिखा है गोवंश के बारे में कि आने वाला भविष्य, और इस समय ये 100% खरा उतर रहा है कि यदि हमको मानवता और हमारी जिसको बोलते सृष्टि के अस्तित्व को बचाना है। दूसरी पुस्तक उसके साथ में ही है, उसमें लिखा है काउ सेव द प्लैनेट्स, ये अमेरिका से प्रकाशित हुई। और तीसरा ये विषय है जिसमें लिखा है सेव लाइवस्टॉक ब्रीड्स टू फीड ए वार्मर वर्ल्ड, यानी हम ग्लोबल वार्मिंग से लेके जो क्लाइमेट चेंज है और बहुत सारी परिस्थितियों में चले गए। तो इस समय भारत के लिए ये समय वरदान हो सकता है। इसी में हमको अवसर देखना पड़ेगा, इसी में अवसर ढूंढने पड़ेंगे, तलाशने पड़ेंगे, और अवसर सामने हैं। और इसके लिए आप सभी की, क्योंकि ये हमारे बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। डॉक्टर चिरंतन जी कांत्याल, जो कि मैं उनको बोलता हूँ वो चिरंतन सोच वाले हैं, और पशु चिकित्सक महासंघ के अध्यक्ष, उनके साथ अभी ये जो सोनटक की सारी परंपरा हमारे कवर कर, जो बहुत बड़ी टीम, उसमें डॉक्टर दक्षिणकर हैं, और हमारे बहुत सारे जैसे डॉक्टर हमारे पुण्यमूर्ति से लेकर बड़ी श्रृंखला है, डॉक्टर मार्कंडेय परमणि में, कि हमारा देशी गोवंश जिसको हम पिछले 50, 60, 70 वर्षों में ध्यान नहीं दे पाए, या जिसके ऊपर दुर्भाग्य से संकरीकरण हो गया, और जैसे ना घर का ना घाट का ऐसी स्थिति बन गई। अब सारे पशु वैज्ञानिक पहले ये सुनिश्चित हो जाएंगे, कम से कम हम पश्चिम की जिसको बोलेंगे उसके उदाहरण, उसकी सोच, ब्राजील, अर्जेंटीना, इजराइल और कम से कम 50 से ज्यादा देश, हमारा देशी गोवंश जिसको आप लोगों ने यानी पश्चिम वालों ने नामकरण किया पॉस इंडिका से जिबू कैटल, वो गोवंश 50 से 100 करोड़ की संख्या में। हम लोगों को पुस्तक लानी पड़ी, हमने जब विश्व मंगल यात्रा की थी, ये पुस्तक मदर इंडिया फादर ब्राजील, कि ब्राजील में हमारा गोवंश की स्थिति में है। आप देख सकते हैं कि जहां पर 3 से 5 करोड़ तक या उससे भी ज्यादा एक सांड की कीमत हो गई, और हमारे यहाँ हमने हमारी नस्लों पर ध्यान नहीं दिया और उसका बेतहाशा संकरीकरण होता गया। आज हमारा जो किसान ग्रामीण वर्ग है वो 2 राह पर खड़ा है। उसको जो मार्गदर्शन या जो उसको दिशा दर्शन हुआ, उसकी सोच वो स्पष्ट करनी पड़ेगी। और इस समय आप सब लोगों को समय मिला है, वो विज्ञान और हमारे सारे वैज्ञानिक लोगों ने बहुत श्रेष्ठ कार्य किए हैं। गोवंश के समग्र उपयोगिता, जो देशी गोवंश के गोबर गोमूत्र, मैं पहले क्रमांक पर उन दोनों को रख रहा हूँ, उसके बाद दूध, दही, घी, छाछ, क्योंकि गोमय वस्ते लक्ष्मी बताया गया वो वास्तविक सच्चाई है, और गोमूत्र वस्ते गंगा या गोमूत्र वस्ते अमृत। तो गोबर गोमूत्र को हमने निश्चित वरीयता दी, और आज इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हमने हर क्षेत्र में सबसे पहले
जैसे कृषि का क्षेत्र है, पशु विज्ञान या गोवंश आधारित या पंचगव्य आधारित जो हमारी पंचगव्य की पारंपरिक पशु चिकित्सा की औषधियां हैं, जैसी इस तरह की पुस्तकें आप देख सकते हैं पारंपरिक औषधि की। और ये औषधियां आप सामने देख रहे हैं जो पंचगव्य के विस्तार वाली औषधियां जो पूरे देश में कई गौशालाएं बना रही हैं। तो इन सब पर वैज्ञानिक शोध करके ध्यान में आ गया कि भारतीय देशी गोवंश के गोबर, गोमूत्र, दूध, दही की छाछ में जो गुणवत्ता है वो विदेशी में बिल्कुल नहीं है। और इसकी तरफ आप लोगों को यहाँ से ध्यान देना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय जो समय मिला है, क्योंकि आज भी ऐसा पता चला कि बहुत सारे क्षेत्र में फिर से ये तालाबंदी बढ़ गई है। और वैसे भी क्योंकि जिनको थोड़ी छूट दी है तो उसमें बहुत सारा समय मिलने वाला है। पहले जितनी दौड़-भाग नहीं, पहले जितने यातायात के साधन है, कितने दिन चलेगा, इसलिए व्यक्ति सोचने को मजबूर है, व्यक्ति के पास समय है। इस समय में जितने काम हुए हैं, इन कामों को बाकी गहराई से आपको देखना है। ये मैं कुछ पुस्तकें एक रेफरेंस के लिए, क्योंकि ये सब चीजें बहुत बार लोगों को भ्रम होता है कि किस तरह का क्या काम हुआ है। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये पंचगव्य की पुस्तकें आप देखिए, ये आईआईटी के साथ हमने कॉन्फ्रेंस की थी, स्वरूप उसका नाम दिया था, ये आयुष डिपार्टमेंट के साथ की थी। ये सारे आप 400-400 पेज के आप देख सकते हैं कि पंचगव्य पर किस तरह का काम, इसमें मनुष्य की चिकित्सा के साथ पारंपरिक पशु चिकित्सा और अन्य बहुत सारे उपयोग के। तो हमारे गोवंश की उपयोगिता का जो ज्ञान विज्ञान भारत में पिछले 25 वर्षों में जो कार्य हुआ है, और ये कार्य मूलतः क्योंकि पशु विज्ञान उनका मुख्य विषय है। अब तक आप केवल एक चिकित्सा का काम या कुछ टीकाकरण का काम, या फिर जैसे सरकारी विभाग में तो जैसे 9 से 5 की बात होती है, कुछ कार्य किया, कुछ कर लिया, घर चले गए। अब इसके थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात कि जो सरकारी विभाग में है, बहुत सारी जगह पर तो इस समय शासन के पास वेतन के लिए आर्थिक स्थितियां बहुत बिगड़ चुकी है शासन की। दूसरी बात, जो युवा पीढ़ी पीछे खड़ी है वो तो ताक रही है कि उनके आगे रोजगार है, उनकी क्या संभावनाएं हैं। तो उनके लिए विशेष हमारा आग्रह है कि जो वरिष्ठ पीढ़ी है वो उनका भी मार्गदर्शन करे, और सबसे बड़ी जो युवा पीढ़ी है वो अपने आप रास्ता खोजना पड़ेंगे, क्योंकि 2-2 बार संदेश केंद्रीय सत्ता से आ गया आत्मनिर्भरता का, स्वावलंबन का। अब स्वावलंबन इस गोवंश के माध्यम से, क्योंकि गोवंश जिसको हमने गोधन, कामधेनु, गोमाता बोला, तो वो ऐसे ही नहीं बोला। और जो भी स्थितियां वर्तमान में है, हम लोग जिस आयोग में हैं, पहले आज के 17 साल 18 साल पहले जब राष्ट्रीय गोवंश आयोग था, अटल जी जब प्रधानमंत्री थे, तब से लेकर अब तक अभ्यास हुआ तो ध्यान में आया कि 70-80% बिना दूध का गोवंश। और खास करके मैं, चूंकि आप सबकी भाषा यानी शासकीय भाषा जैसे हम पहले से सुनते हैं, हमारे आयोग की बैठकों में ध्यान में आता था, ये गोवंश खाली है, बेकार है। अंग्रेजी भाषा में नॉन मिल्किंग या जिसको अनप्रोडक्टिव, उसका आगे जाके बोलते थे फिट फॉर स्लॉटर, फिट फॉर कलिंग। वास्तव में भाषा ही बदलनी है, और हमने तो हमारे केंद्रों से, हमारे जितने केंद्र हम सब संस्थाओं से जुड़े हैं, उन केंद्रों ने भाषा बदल दी है। आज देवलापार में इस समय भी 700 के आसपास गोवंश है। एक जगह हमारा चंद्रपुर जिले में 150 है। ऐसी देश में सैकड़ों गौशालाएं जो बिना दूध का गोवंश पालन कर रही है, और 50, 100, 150, हमारे यहाँ 150 लोगों को लगभग रोजगार दे रहे। ऐसे रोजगार खड़े हुए हैं, और एक बहुत विस्तार का कार्य वो गोबर गोमूत्र की उपयोगिता से हुआ है। तो इस विषय को आपको खुद पहले विश्वास ग्रहण करना है, समझना है, क्योंकि फिर आपके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में और जो हमारे गोपालक वहां तक जाएगा। तो इसलिए मैंने आग्रह किया कि जैसे आप लोगों ने एक आदत पड़ गई, आप लोग इस परंपरा में रहे, तो सबने अंग्रेजी में आपने शुरुआत की। मैं आप सबसे सामान्य पूछता हूँ कि कितने भारतीय गोपालक अंग्रेजी जानते हैं, और कितने अपनी अंग्रेजी की बात सुनकर गोपालन करेंगे। तो आप सबसे विशेष प्रार्थना है कि इस आदत को तत्काल बदल देना है। आपको पारंपरिक भाषाओं में आना पड़ेगा। जितने हमारे प्रदेश हैं दक्षिण भारत में, जैसे हम 4 मुख्य भाषाएं, तमिल, आंध्र, ये हमारी तेलुगु और मलयालम, कन्नड़, इधर उड़िया, बंगाली, प्रादेशिक भाषा में यदि हम आगे ले जाएंगे विषय को, तो और उस नस्लों की सब तरह की जानकारी, तो हमारा पशुपालक गोपालक समाज उसको ग्रहण करेगा, उस बातों को समझेगा। अन्यथा हम कुछ बात करेंगे और वहां तक वो पहुंच भी नहीं पाएगी, उसके पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं। तो पहला काम आप सबसे आग्रह है कि इन गव्यों की, पूरे देशी गोवंश की समग्र दृष्टि से, क्योंकि ये पूरा होलिस्टिक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, इसकी पूरी जानकारी, क्योंकि आज हमारे पास संयोग से संसाधन है। आप सब जैसे आजकल हम ये सब जो बैठकें चल रही है लगातार, क्योंकि इसमें भी कुछ न कुछ विदेशी अंश आ ही जाता है कि हम ये जो
जूम पर या कहीं पर मीटिंग, कहीं फेसबुक पर है, कहीं कुछ चीजें। निश्चित रूप से भारतीय हमारे जो संगठनों के या इसके मीडिया के विशेषज्ञ इसमें भी आगे ध्यान देंगे कि भारत इसमें अग्रणी रहेगा। तो हम इन संसाधनों का उपयोग ज्ञान का प्रचार प्रसार या जानकारी के लिए कर रहे हैं। तो इसमें वो विज्ञान अनुसंधान के अंदर हमने प्रयास किया कि हमारी वेबसाइट पर और हमारे पास बहुत सारी चीज नेट पर यानी जिसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपीज में उपलब्ध है। आप सबको ये कोई भी चीज गोपनीय नहीं। हमने गोमूत्र अर्क के पेटेंट लिए, कीट नियंत्रण के पेटेंट, कुछ भी जानकारी है वो सारी की सारी सबके लिए सुलभ है। तो पहले आप सबसे प्रार्थना रहेगी कि इस जानकारी को आप संकलित करें, इस जानकारी को पढ़ें। अभी आपके पास समय है, ये पूरा समय हमने आपसे ले लिया, हम अधिकार से आपको बोल सकते हैं कि आपको अब देश हित के लिए कार्य करना है, उसके लिए प्रवृत्त होना है। हमारी बहुत सामान्य बात थी, भारत की सोच बड़ी सामान्य है क्योंकि भारत का जीवन बड़ा सरल रहा है, कर भला तो हो भला। तो हमने, जैसे हम बोलते हैं कि इसका जैसे अंग्रेजी में रहता है एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हम यदि कुछ अच्छा करेंगे तो निश्चित हमारा भी अच्छा होगा, कल्याण की बात हम करें। तो हमको अब समाज के हित की जब बात करनी है तो हमको इसकी गहराई में जाना पड़ेगा। अब आपको बहुत लोगों को पहले विदेश जाने की ललक होती थी, कहीं वहीं से पीएचडी, कहीं और फिर पीएचडी बनाएगा, कुछ जैसे बोलते हैं कपाट का धन। अब वो सब तो लगभग टूट रहा है, वो तिलिस्म का जाल टूट रहा है। तो अब भारत की तरफ देखना है, भारत के ज्ञान विज्ञान को समझना है और समाज के लिए मेरा क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, ये सब थोड़ा किनारे रख देना है। मैं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा क्या योगदान हो सकता है, और ये जितना आगे बढ़ाएंगे उतना आपका अपने आप भला होता है। क्योंकि मैंने जब युवा हमारे पशु विज्ञान की बात की, हमारा आगे लक्ष्य ऐसा है कि इसमें आपको आज हम कम से कम 1000 से ज्यादा युवा इंजीनियर्स, उसमें बहुत सारे ये ग्रंथि वाले IT प्रोफेशनल्स और बहुत तरह तरह के अन्य विशेषज्ञ पशु विज्ञान से अलग उनके गोवंश आधारित प्रोजेक्ट देश भर में चल रहे हैं, सफल प्रोजेक्ट्स। पशु वैज्ञानिक उसमें आगे आए और ये चीजों को जब वो समझेंगे, कहीं वो गौशाला से जुड़ेंगे, कहीं अपने खुद प्रकट डालेंगे, और जिनका और कुछ आगे जाके प्रयास है जहां पर उनका थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र से नजदीकी है, वो किसानों के बहुत अच्छे मार्गदर्शक। कि हमने जब बात की थी कि अन्नदाता सुखी भव, अब आप ये सोचिए कि जो किसान गांव में रह रहा था, एक सामान्य विचार करिए कि जो 2, 4, 5 जितने भी थे, क्योंकि सारे पलायन करके शहरों में बस गए थे, वो सबके सब यानी 70-80% फिर गांव में वापस आने की स्थिति में आ गए। अब वो 2 गुनी संख्या जो गांव की होने जा रही है, जो थी उससे निश्चित 1.5 से 2 गुनी, उनको संभालना है, उनको कार्य, उनको रोजगार, उनको आशा की किरण दिखानी है। उसमें आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआत जैसे हमने गोबर गोमूत्र से की है, अभी जैसे हमने गोमूत्र से कीट नियंत्रण बनाया, हमारी जो मैं कुछ उल्लेख, हमारी कृषि जागरण में कुछ बैठकें हुई, फेसबुक पर चल रहा है, में ये जरूरी है। इसी तरह का गो अमृतम बैक्टीरिया हमने शिविर गौशाला, आप सबसे आग्रह रहेगा जिनको संभव है कम से कम वेबसाइट पर, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्व का विषय है, देशी गोवंश क्या चमत्कार कर सकता है एक व्यक्तिगत परिवार का। क्योंकि गोपाल जी सुतारिया हमारे, उनका व्यक्तिगत और बहुत, वो तो सामाजिक काम कर रहे हैं, लेकिन पालन तो गोपाल अपने परिवार के माध्यम से कर रहे हैं। तो 700 से ज्यादा गोवंश, वो क्या अमृत उगल रहा है और उसमें क्या क्या विस्तार से काम हो रहे हैं, तो आपके ध्यान में आएंगे कि गौशालाएं कितना चमत्कार, जहां पर 250 से ज्यादा सांड वो देश में गांव में दे चुके हैं। जेजुआ नाम के घास पर विशेष काम हुआ। अभी गो अमृतम जो इस तरह का एक अमृत पानी का घोल बनाया, वो गांव-गांव तक लाखों किसान तक पहुंच गया है, करोड़ों किसानों को ले जाने का प्रयास चल रहा है। जैसे देवलापार की गौशाला अकोला में आदर्श गौ सेवा अनुसंधान हमारा है, जो 800 गांव को जोड़कर वो काम कर रहा है। बाफना जी की गौशाला जलगांव में है, भारतीय परिवार की सेंधवा में है। ऐसी कई गौशालाएं श्रेष्ठतम कार्य देशी गोवंश को लेकर, उनके पास न्यूनतम संसाधन थे। बहुत सारे पशु वैज्ञानिक इतने बहुत जुड़े, कुछ जगह जुड़े हैं। आपको वहां जुड़कर देखना है कि ये जो विदेशी जर्सी होल्स्टीन फ्रीजियन का भ्रमजाल था, इसको पहले तोड़ना है। और इसके जो प्रभाव शुरुआत खेती से होगी कि जो गोबर गोमूत्र को अंग्रेजी भाषा ने वेस्ट बोला था, और हमारे, मैं नाम लूंगा, रामजीत जी शर्मा ने पंतनगर में जब काम किया, डंग इज गोल्ड माइन, जैसे हमने बोला था गो में बसते लक्ष्मी, ऐसा बताया कि गोबर में सोने की खाना वास्तविकता है। तो आपको इस पर ध्यान देकर कृषि में इनके उपयोग से, कि हम इस यूरिया फॉस्फेट या कीटनाशक की जो पेस्टिसाइड, खतरनाक जो चीजें थी, जो जानलेवा साबित हुई, इसको त्यागना है। ये किसानों को आपको बताना पड़ेगा, और इसका ज्ञान विज्ञान आप जैसे समझते जाएंगे, ये किसानों के लिए वरदान रूप में
क्योंकि किसानों को अब उनके स्थान पर प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ी। अब हम बहुत जगह हमारे यहाँ दे रहे हैं, प्रयास होगा वो जल्दी शुरू भी करेंगे, लेकिन आज जब करोड़ों किसानों तक ये विषय ले जाना है तो हमको किसानों के द्वार पर ये चीजें उपलब्ध कराना, हमारा थोड़ा सा जैसे बोलते हैं हृदय का द्वार, हमको अब थोड़ा बड़ा मन करना पड़ेगा। अब हमको थोड़ा संकीर्णता से बाहर आना पड़ेगा। पिछले कई वर्षों में ये वहीं का पश्चिम के दुष्प्रभाव से लोग, जिसको अंग्रेजी में नैरो माइंडेड, बहुत संकीर्णता हमारे दिमाग में आई। लोगों को लगने लगा जैसे आज बहुत जगह पर ये भयावह, उसकी भी हम बाद में चर्चा करेंगे, जो कोरोना का या इसका जो प्रकोप चल रहा है, तो लोगों ने अपने यहाँ पे जैसे बैरिकेड्स, कहीं गांव में मतलब कहीं कहीं ये यहाँ तक ध्यान में आया कि घर से घर का सदस्य आया, उनका लड़का आया, उसको घर में प्रवेश नहीं, उनको लगा कि ये भी कोरोना ग्रस्त है। यानी लोगों के बीच की दूरियां बहुत जगह पर अनावश्यक रूप से भय की वजह से बढ़ गई। तो हमको इसके बीच में काम करना है, तो हमको थोड़ा बड़ा मन करके, थोड़ा हिम्मत, थोड़ा साहस का परिचय देते हुए इसको आगे बढ़ाना है। तो पहला काम खेती से शुरुआत है। खेती में बहुत विस्तार का, क्योंकि खेती में आज जो किसान का विश्वास उठ रहा था, इतने करोड़ से ज्यादा किसान जब खेती छोड़ चुके, हमारी जल स्तर जो नीचे जा चुका, हमारी भयंकर स्थितियां, बीमारियों का प्रकोप उसका कोई सीमा नहीं है। जैसे लोगों ने बताना शुरू किया कि डायबिटिक कैपिटल होगा, कैंसर कैपिटल होगा, और अभी तो ये सब जो संक्रमण के प्रकोप, तो इन सब से छुटकारा गोवंश आधारित जैविक खेती, जिसको काउ बेस्ड लो कॉस्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। मैं इस अंग्रेजी खाली इसलिए कि थोड़ा लोगों को वो रहता है, मोह रहता है, इसलिए मैं खाली वो शब्द बता रहा हूँ कि जैविक खेती ये पूरी दुनिया की आज मांग हो गई है, और इसमें पौष्टिकता बढ़ रही है, इसमें बहुत सारे काम, उसको भी आपको देखना है। तो पहला काम जैविक खेती को प्रस्तावित करना, खेती में किसान का विश्वास फिर से लाना, हमको किसान के हितैषी, और हम में से बहुत सारे तो किसान परिवार से आते हैं, तो हमको उस तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि हम आज तक उसके प्रति कृतज्ञ बने हुए थे, अब उसके प्रति थोड़ा कृतज्ञता, उसके प्रति हम थोड़ी चिंता करें और उसको सही स्पष्ट मार्गदर्शन, वो जो गुमराह हो रहा था, वो जो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड था, उससे बाहर निकालें। पहला काम खेती का ये काम, जैसे हमारे यहाँ गोंदिया के पास तिरोड़ा में हम कर रहे हैं, मैंने पिछले दोनों उसमें उल्लेख किया था, बंगाल के और कई जगह पर हम उस कामों को कर रहे हैं। महाराष्ट्र में, उड़ीसा में ये कुछ चित्र उनके हैं, कुछ गाँव में जो बदलाव हुआ है, ये हमारी बहुत सारी पुस्तकें उस रूप में हम लेकर आए कि सफल किसानों के जो अनुभव, तो ये सब चीज़ें जो हमको सामने देनी है कि इसमें ये सब कृषि की जो अनिवार्यता और ये सारी चीज़ें हैं, तो हमको ऐसे कामों को देखना। अब इसके लगभग सारे राज्यों में श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम अनुभव, और अभी हमारे बहुत सारे संगठन उसमें बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हमारे एकल विद्यालय, कन्या आश्रम, गायत्री परिवार की टीम है, आर्ट ऑफ लिविंग, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं। तो आपको अपने अपने स्थान पर ये सफलता की कहानियां ध्यान में आएगी। उसमें आपका जोड़ हो गया तो उनको सांड कैसे रखना, उनको गोवंश का पालन, आपको यहीं पर मैं संकेत कर देता हूं कि बहुत बार पिछले कई वर्षों से आपात धर्म के अंदर उसको नियमित कार्यक्रम बना दिया कि कृत्रिम रेतन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जैसे परंपरा बन गई। हमारे यहाँ सांड छोड़ने की वर्षोत्सर्ग की, और ये बहुत सही संतुलित व्यवस्था थी। हर गांव में या 2-4 गांव में एक सांड रहता, और वो देशी नस्ल का, और उसकी पूरी चिंता होती थी। गोचर भूमि सुरक्षित थी। आज राजस्थान में ये लाकोड़िया दिखा रहा है कि गोचर के माध्यम से 58 गांव जैसे ठीक हो गए, तो वहां पर वो सांड रखना एक सामान्य स्थितियां, और उसके कारण अच्छा प्रजनन, अच्छी स्थितियां होती। पूरे पश्चिम में स्विट्जरलैंड से लेकर कई देशों में ध्यान में आया कि नेचुरल से प्राकृतिक प्रजनन के माध्यम से जो गोवंश में गुणवत्ता आ रही है वो कृत्रिम रेतन से नहीं आती। हमने मुजफ्फरपुर और कई जगह पे देखा कि विदेशी सांड कहर ढा रहे हैं, व्यभिचार जैसी स्थिति बन रही है। तो आप इसको छोड़ें, इसका मोह छोड़ें, और उसके आगे जाकर यहाँ तक स्थिति बना दी कि जो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट से लेकर और फिर अभी आगे जाकर तो सॉर्टिंग सीमेन और बहुत सारी बातें, ये सब बचकानी हरकतें हैं। कृपया इससे बाज आइए। ये कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है, ये हमारे पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अभी प्रकृति ने पूरे दुनिया को दिखा दिया कि प्रकृति सबके ऊपर क्या कर सकती है। प्रकृति रुष्ट हो गई तो किस स्थान पर क्या ले जा सकती। एक तरफ पहले पर्यावरण की बात हम कर रहे थे कि क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण बदल हो रही, अभी इस छोटे से विषाणु जो सूक्ष्म दर्शी से दिखेगा उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, सारी दुनिया ठहरी। तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ हम बंद करें, हमारे गोवंश के वैज्ञानिक, क्योंकि इसमें साहस और वीरता का परिचय हर स्थान पे देना पड़ेगा। आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो ये हमारा क्रांतिकारी कार्यक्रम है।
भारत को अभी क्रांतिकारियों की बहुत जरूरत है। और हमारा, चूंकि हमारे यहाँ शालीहोत्र पहले ऋषि दुनिया के रहे हैं जो पशु विज्ञानी, हर जो अच्छी चीज की शुरुआत तो भारत से हुई। यदि हम पशु वैज्ञानिक भटके हुए रहे तो हमारा कृषक, हमारा गोपालक समाज, पशुपालक समाज वो भटक जाएगा। तो आपसे पहली प्रार्थना है, क्योंकि आपने सुना होगा हम लोगों ने वहां पर करनाल में राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो में कॉन्फ्रेंसेस की, उसका नाम था कंजर्वेशन ऑफ डोमेस्टिक एनिमल बायोडाइवर्सिटी विजेबिस इंट्रोस्पेक्शन, आत्म परीक्षण। अब हमारे आत्म परीक्षण की क्या स्थिति है? ये बात तो 2001-2 की बता रहा हूँ। हम उसकी कॉन्फ्रेंस जो गोष्ठियां हो रही है, हम लैब टू लैंड की बात कर रहे हैं, डिसेमिनेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। उसी गोष्ठियों में मैं उसमें उपस्थित था। उसमें चिंता व्यक्त की गई कि हमारे यहाँ 2 कुबड़ का ऊंट होता था, हमारे यहाँ इस तरह के भैंस की तरह की गोवंश की प्रजातियां लुप्त हो रही है, लोग गोवंश पालन से दूर जा रहे हैं। तो ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस तक या केवल जिसको बोलते हैं हॉल तक सीमित कार्यक्रम, इसको बंद करिए, इसको धरातल पर साकार करना है। तो उस अंग्रेजी के और जो पश्चिम के चोले से बाहर आना पड़ेगा। उनका अधूरा सोच रहा है, उनका जिसको बोलते हैं बहुत अल्पकालिक लाभ की वृत्ति रही है, हमारी दीर्घकालिक टिकाऊ व्यवस्था रही थी। तो हमको हमारी व्यवस्थाओं को, हमारी सोच को पकड़ना पड़ेगा। तो हमारे देशी गोवंश को देशी पद्धति से, उसके जैसे हम आप लोग पेडिग्री या जो भी गोवंश की देखभाल है, आज एक गोपाल जी नहीं, हमारे पास लगभग हर नस्ल में बहुत अच्छे गोपाल है। हमारे मिलिंद जी देवल हैं, पुणे निवास है, पूरे देश में अभी उनका प्रवास हम शुरू कर रहे हैं। लगभग 400 के आसपास अच्छे गोवंश पालक उनके माध्यम से, जो कई डॉक्टर्स हैं एलोपैथी के, अंग्रेजी चिकित्सा के डॉक्टर्स, वो कोई किलार नस्ल का पालन कर रहे, कोई डांगी का कर रहे। और परिवर्तन ये हुआ है कि 1 साल का बछड़ा उसकी बुकिंग 50-50 हजार रुपए में हो रही है। यानी सारे गांव के गांव जाग गए हैं और सारी देशी नस्लों की यहाँ पूरे देश में चल रही है। तो ये आंखें आपको खोलनी पड़ेगी और इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यही व्यवस्था आगे टिकने वाली है। इसको ये नहीं हो सकता, वो नहीं। अभी पूरे देश में जब हम जा रहे थे, आपका राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और बहुत सारी ऐसी अलग अलग गोष्ठी में हमको भी जाना होता है, तो लोगों का एक सामान्य सोच बन गया, बिना दूध का गोवंश कोई पालेगा क्या? आज आपको बता दें, लोगों की कतारें लगी है, जिसको बोलते हैं प्रतीक्षा सूची। देवलापार, अकोला, ऐसे देश भर के केंद्र है और हमारे किसान संघ से लेके हमारे अक्षय कृषिपुरा, हमारे सब संगठनों को हमने साथ लिया है। बिना दूध के गोवंश की मांग पूरे देश में गोबर गोमूत्र के लिए सारे देश में चल रही है और इसी को बढ़ाते जाएंगे तो गोवंश अपने आप में वरदान साबित होगा। नहीं तो क्या होगा, ये आपके सामने है। ये भारत की लूट लिखा है, ये बांग्लादेश 15 से 20 हजार 25 हजार गोवंश प्रतिदिन जाने वाला, ये बंद करना है। तो हमको किसानों को जगाना पड़ेगा और किसानों को बताना पड़ेगा कि ये गोवंश तुम्हारे आगे का उज्जवल भविष्य का निर्माता है। तो ये काम खेती से शुरुआत होगी, उसमें हमने जो जो भी उत्पादन बनाए और इसके साथ हम सब चीजें समग्रता में, देशी बीज से लेके खेती के हर विषय को हम देखा है, क्योंकि वो बड़ा विषय है। लेकिन मैं खाली संकेत कर रहा हूँ कि उस विषय पर हम ध्यान दे रहे हैं कि वो खेती में, चूंकि गांव में ये अनुभव आ गया कि जहां पर 2 गोवंश पाल रहे थे, अब 4-4 पालन कर, 1-2 एकड़ वाले 4-4 गोवंश पालन कर, और बहुत मजबूती के साथ, बहुत विश्वास के साथ। और वो बता रहा है कि ये गोवंश को हम नहीं पाल रहे, ये हमको पाल रहा है। ये उनके जिनको बोलते वक्तव्य हैं। आपके सामने ये सारे उत्पादन आप देख रहे हैं। ये पंचगव्य के उत्पादन अब आधे से ज्यादा किसान के यहाँ बनने लगे। किसान को, क्योंकि हमने बताया था घर घर गाय, ग्राम ग्राम गौशाला हमारी निरोगशाला। अब जैसे ये गोमूत्र अर्क बन रहा है, ये विश्व की सर्वश्रेष्ठ औषधि के रूप में सामने आया है। गोमूत्र का डिस्टिलेट है, गोमूत्र की भाप ठंडी की है। थोड़ा सब लोग विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि हमारे अंदर बहुत भ्रांतियां चलती हैं। ये पंचगव्य आयुर्वेद चिकित्सा और इसका जो विस्तार से कार्य है, ये देखिए पंचगव्य आयुर्वेद की ये सब पुस्तक आपके सामने है। ये कैंसर पर परिणाम देखिए, ये डॉक्टर वर्मुडी हमारे केरल से हैं, ये कैंसर रोगियों के मैं बता रहा हूँ। और कल हमने शुरुआत की, क्योंकि वो थोड़ा गुजरात से काम हुआ था। गुजरात सरकार और गुजरात के आयुष डिपार्टमेंट और धीरे धीरे भारत का आयुष डिपार्टमेंट उस तरफ बढ़ रहा है। इस गोमूत्र के और ये बहुत सारी चीजों का इस विषाणु के लिए प्रयोग को मान्यता गुजरात से शुरू हो गई है। कई राज्य पीछे, अभी हम आज भी उसकी कुछ बैठक शाम को करेंगे। बनारस से लेके बहुत सारे महाविद्यालय, हॉस्पिटल्स, क्योंकि सारे को ध्यान में आ गया कि आयुर्वेद ही इसमें मारक प्रभाव है, जिसको रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब इसके पेटेंट्स 5 से ज्यादा हुए। पहली बात तो राम स्वरूप चौहान से, क्योंकि राम नाम में राम का है, इन्होंने इस पर बहुत सुंदर काम किया। रोग प्रतिरोधक क्षमता 104% पे बढ़ाता है। पंतनगर से हुआ, कुछ बरेली में आगे काम, अभी कुंभकोण में इस पर PhD हो गई।
हमारे डॉक्टर संजय जी बातें ने इसमें पीएचडी की। अब इसमें पहला पेटेंट हुआ ये बायो एनहांसर, ये हमारे औषधि की उपलब्धता जो एंटीबायोटिक के बाकी औषधियां हैं उसको 2 से 4 गुना से लेकर 80 गुना तक बढ़ाता है। उसके बाद इसमें एंटीबायोटिक, एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल, इसमें खुद में वो गुणधर्म है। ये इसमें बहुत सारे वोलाटाइल फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, तो ये चुनकर कैंसर कोशिकाओं को मार रहा है, अच्छी कोशिकाओं को पुनर्जीवन कर रहा है। ये स्थिति बन गई कि गोमूत्र 350 से 400 रुपए लीटर अर्क बिक रहा है। ये जैसे कीट नियंत्रक आपको बताया कि कीट नियंत्रक इन सबके लिए गोमूत्र, रॉ गोमूत्र 50 रुपए लीटर तक। अब इसके परिणाम देखिए आप, आज ये अंग्रेजी चिकित्सा ने, एलोपैथी ने क्या दिया, MDR मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस, इन्होंने दिया AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इसके कारण वो सब दूर हो रहा है। टाटा, यहाँ पर टाटा के अस्पताल ने बहुत सी चीजों को स्वीकार, उनके ध्यान में उन्होंने रोगी देखे। कोटा के टीबी अस्पताल में इसके ऊपर डॉक्टर गुप्ता जी ने विशेष काम किया। 2000 से ज्यादा रोगियों में पूरा MDR रिवर्सल। और इसके आगे बढ़कर डॉक्टर कोलकिया जी जूनागढ़ में देख रहे हैं, क्योंकि इसका pH 8.5 से 14 के बीच में अल्कलाइन है। आज अल्कलाइन वाटर दुनिया में, ये तो प्राकृतिक है। इसके अंदर कोई भी तरह का वायरस, उन्होंने उस तरह काम किया है कि वो वायरसेस 5.5 के आसपास एसिडिक pH में वो इसमें नष्ट हो जाते हैं। और ये काम बहुत आगे बढ़े, एक बहुत बढ़िया संदेश दिया। वी आर गारंटिंग फॉर वेलबींग ऑफ एवरी कैंसर पेशेंट विद कामधेनु अर्क। लगभग 8-10 हजार कैंसर होगी। ये जो चित्र आपको बता रहे हैं ये काल्पनिक नहीं है। ऐसे हमारे यहाँ ये स्टेज 4 का ओरोफेरेंजियल कार्सिनोमा है। अशोक कलवार हमारे बीकानेर से हैं, अभी जोधपुर रहते हैं। ये माता जी का केस है और इस पर बहुत विस्तार से, क्योंकि यही सब चीजें अभी हमारे ऑस्कर फर्नांडिस जी ने राज्यसभा में बताया। कई हमारे, चूंकि हमें स्वास्थ्य मंत्री ये सब जानते हैं, हमारे आयुष मंत्री, ये सारी चीजें बहुत वैज्ञानिक स्तर पर, और जितने आप लोग सुन रहे हैं अब इसमें हमारे यहाँ बहुत जगह पर गौशालाएं, जब उनको अच्छे पशु वैज्ञानिक का सहारा नहीं मिल रहा तो निश्चित गुणवत्ता कम ज्यादा होती है। आपका सहभाग मिलेगा, अच्छे वैद्यों का सहारा मिलेगा, अच्छे कृषि वैज्ञानिक मिलेंगे, अच्छे फार्मेसी वाले, हमने इन सबका जोड़ किया है, अच्छे ऑन्कोलॉजिस्ट, अच्छे डॉक्टर्स, तो इनकी गुणवत्ता उच्चतम स्तर पे जाएगी। आज भारत की गरिमा को हमारी व्यवस्थाएं, क्योंकि हमने गोवंश के विषय को हल्का समझा, उसको दरकिनार किया, उसमें इतनी श्रेष्ठ योग्यता यदि लग जाएंगी तो ये सारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की औषधियां ये अंतर्राष्ट्रीय परिणाम दे रही हैं और आगे देंगी। इसलिए हमको गांव-गांव, घर-घर तक ये सारी सुदृढ़ व्यवस्थाएं, लोगों को उसके बारे में आगाह करना। अब ये सारी चीजें बन रही तो हमारा जैसे जंगल का क्षेत्र है, अभी आपने कभी अनुभव किया होगा, आप चूंकि आपका विषय इसलिए बहुत महत्व का विषय है, महाराष्ट्र से शुरुआत हुई, BT कॉटन आया जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जिनांतरित बीज, बहुत सारे मवेशी उसका अपशिष्ट खाकर मरने लगे। और ऐसे ही उन्होंने दुस्साहस करके पश्चिम के आसुरी षड्यंत्र ने BT मक्का लाने का, BT ब्रिंजाल बैंगन लाने का, चीन ने तो अभी क्योंकि उसका विवादित, लेकिन उन्होंने प्रयास किया, वो लाए वो सिंथेटिक राइस। ऐसी खतरनाक चीजें, यदि ये गोवंश को प्राकृतिक खाद्य दिया तो ये परिणाम है। वो सब जो खतरनाक चीजें हैं उसको वहीं रोकना है, किसान को उससे बचाना है। हर तरह का विदेशी बीज या जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है उसको तत्काल रोकना। अब हमको थोड़ा कमर कस के खड़ा होना पड़ेगा। अभी ये पश्चिम वाले जो इनका जो इसको बोलते हैं हमारे ऊपर, जो जिसको शिकंजा बोलिए, जो भी चल रहा था, अब वो ध्वस्त हो गया, हमको ध्वस्त कर देना है। अब वो आपकी तरफ देख रहे हैं आशा की किरण से, आपको अपने आप में आत्मविश्वास खड़ा करना, आत्मसम्मान की तरफ जाना है। तो हमारी ये सब चीजें, इसमें पंचगव्य के बहुत सारी चीजें हैं, मैं कुछ का उल्लेख करने वाला हूँ। उसमें मंजन, साबुन से लेके, क्योंकि ये सबको बताना बहुत जरूरी है। इसके परिणाम ऐसे हैं कि साइंटिफिकली, वैज्ञानिक दृष्टि से तो देख रहे थे, लेकिन उसके आगे जाकर, जैसे अभी ये गोबर, मुल्तानी मिट्टी, गेरू की साबुन बनाई। अब ये सबसे पहले तो कनाडा के ब्यूटी पार्लर से फोन आने लगे, फ्रांस वालों ने इसको फिल्म बनाई, बैक्टीरियल एंड होली डंक, 6 o'clock, और इसमें गोबर से ये मंजन बनाया है। अब ये मंजन, ये साबुन, ये धूप, ये मॉस्किटो कॉइल, अब ये गांव में जब बनने लगेंगे तो कोई प्रकार के जो कंपनी केंद्रित, क्योंकि हमको सही अर्थ में विकेंद्रीकरण, हमारे जो दीनदयाल जी थे उनका एकात्म मानव दर्शन ऐसा चिंतन था, ये सारी चीजें उसको रोजगार भी दे रही। ये हमारे तिरोडा और कई सारे ब्लॉक्स में, बड़वा से लेकर जहां जहां पर एक काम पहुंचा है वहां पर बड़े प्रमाण में किसान बनाकर बिक्री भी कर रहे हैं और एक अच्छा रोजगार का केंद्र खड़ा हुआ है। इसमें गोबर के शिल्प, जैसे आप देख रहे हैं, गोबर से बनी हुई है,
ऐसी कई चीजें। और इस सब में ध्यान में क्या आया कि हमारे देशी गोवंश के गोबर में, गोमूत्र में ये गुणवत्ता है, ये परिणाम है। विदेशी गोवंश में खतरे हैं। अभी आपके सामने ये पुस्तक है, ये दूध के विषय में है, इसको भी थोड़ा समझ लेंगे, डेविल इन द मिल्क, कि भारतीय देशी गोवंश जो प्राकृतिक खाद्य खा रहा है उसको, जो जिसको बोलते हैं कि पौष्टिकता और जो सारी चीजें मिल रही है, तो ध्यान में आया कि उसमें एक विशेष स्तर का A2 नाम का प्रोटीन है जो हृदय रोग, कैंसर और ऑटिज्म, कई तरह के रोगों को रोक रहा है। और ये पुस्तक इसलिए लिखी गई कि 25 वर्ष पहले न्यूजीलैंड और कई देशों में 9-9 साल के बच्चों में ऑटिज्म आने लगा, हृदय रोग हुआ, कैंसर हुआ, कई खतरनाक स्थितियां, क्योंकि उन्होंने गोवंश को मांसाहार खिलाया तो मेडका हुआ, उन्होंने ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन दिए तो सीधा कैंसर कारक दूध हुआ, उन्होंने ऑक्सीटोसिन दिया तो प्रीमेच्योर मैच्योरिटी हुई। अब हमारी देशी गाय का दूध, गोमूत्र में हमने काम किया, दूध गोबर में काम किया, उनका गोबर आपने देखा कि गिरता है, फैल जाता है, उसमें कोई सार तत्व है जिसको ठोस तत्व नहीं है। हमारे ये सारे काम वैज्ञानिक नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य हुए हैं। आपको अब इसके भीतर झांकना है। ये सारे काम यदि हम किसान तक ले जाते हैं तो वो कहीं बाहर झांकेगा नहीं, उसको अपने स्थान पर ये ध्यान में आएगा कि ये गोवंश जो सामने खड़ा है ये मेरे लिए वरदान है। हम लोग देवला पार के केंद्र में लगभग 2,25,000 के आसपास को रेसिडेंशियल निवासी प्रशिक्षण दे रहे हैं। 18 से 20,000 प्रतिवर्ष पिछले लगभग 10 वर्षों से, उसके पहले थोड़े कम आ रहे थे, यानी 25 वर्ष के कार्यकाल में लगभग 3 लाख के आसपास वहां आ गए। हम लोगों का प्रवास, हमारे वरिष्ठ अधिकारी, हमारे जैसे सावला जी है, जी हैं, हमारे राजेंद्र, बहुत सारे तरह तरह के, हमारे सीताराम जी से लेकर सतना, हमारे शंकर लाल जी, अजीत जी, बहुत तरह तरह के हमारे अधिकारीगण, तो देश भर के प्रवास में ऐसे देश भर में केंद्र हो गए जहां पर ये सब उत्पादन और उसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादन और ये रोजगार का बहुत बड़ा साधन। अब किसानों को एक श्रेष्ठ भविष्य, आपका इसमें नेटवर्क साथ में आ गया तो जैसे बोलते 1 और 11 ऐसी स्थिति में आगे बढ़ेंगे। तो हमको इस तरह के उत्पादन, घर घर गाय, ग्राम ग्राम गौशाला, हमारी निरोगशाला, ये साकार करना है। तो ये सारे उत्पादन आप सबके माध्यम से, क्योंकि 6 लाख से ज्यादा गाँव का देश है और हमने बोला है गाँव हमारी आत्मा है, गाँव हमारी रीढ़ है। हमारा संदेश बड़ा स्पष्ट था, चले गाँव की ओर, चले गाय की ओर, चले प्रकृति की ओर। अब आप देखिए कि आप 2 महीने से बेबस होकर घर में हैं, प्रकृति ने डंडा चलाया है, आपकी सारी दौड़ भाग, बंबई वाले सुबह 5-13, मैं बंबई 25 वर्ष रहा हूँ, 5-13 की गाड़ी पकड़नी है, सब शांति हो गई। अब थोड़ा और आगे बढ़ जाइए कि थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में, कि लोगों को लग रहा था, पिछले जब फेसबुक पर कार्यक्रम 12 तारीख को, तो मुझे लोगों ने बोला कि दखियन उसी, या जिसको बोलते थोड़ा हम पुरातन उसमें जा रहे क्या, वहाँ आनंद है, वहाँ जीवन का आनंद है। इस दौड़ भाग में लोग सांस लेना भी भूल जाते हैं, सांस भी कैसे चला पता नहीं। बंबई में जैसे सब जगह दौड़ रहे, किस लिए दौड़ रहे, खाना खाने की होश नहीं है। फिर आगे क्या आ रहा है, ऑटो इम्यून डिसीज से लेके सारा जिसको बोलते हैं लाइफस्टाइल डिसीज, और फिर उस चक्र में, दुष्चक्र में फंसा हुआ है। यदि हम ग्रामीण क्षेत्र की तरफ जाएंगे तो हमको जीवन का आनंद आएगा और उनके आनंद में हमारा भी आनंद शामिल हुआ तो हमारा आनंद कई गुना बढ़ जाएगा। हम बोलते हैं हमें दीप वहां जलाना है जहां अंधेरा है, हमारी भाषाएं रही है, राष्ट्राय स्वा राष्ट्राय इदम नमः, ये सब बोलने के लिए नहीं है, ये करना पड़ेगा और ये सबको करना पड़ेगा। हमारे यहाँ इतनी बड़े स्तर पर कार्यकर्ता, इनकी जरूरत पड़ेगी स्थान स्थान पर। वहीं पर आज जैसे हम ये सब कॉन्फ्रेंस मीटिंग सब कर रहे हैं, हम, हमारे ललित जी बंगाल में रहते हैं, वहाँ हमारी बड़ी अच्छी टीम काम करती है, उनका जी बहुत सारे लोग। हमने बोला ये कॉन्फ्रेंस मीटिंग या कुछ, तो इसका प्रशिक्षण का कुछ जैसे बोलते मॉडल, कुछ मॉड्यूल, कुछ व्यवस्थाएं, अभी ऐसा आज ही मुझे बताया कि भारत सरकार ने ई लर्निंग ऐसा कुछ शुरू किया। ये सब अपनी जगह सब ठीक है, लेकिन हमको ग्राम स्तर पर कुछ ज्ञान, जानकारी, उसका अज्ञान हटाना, उसकी दुविधाजनक मनस्थिति ठीक करना, ये आपको करना पड़ेगा। और इसके लिए आप एकदम महत्वपूर्ण कड़ी हैं। आपके अंदर कोई जिसको संदेह, कोई दुविधाजनक या डामाडोल मनस्थिति, ये बिल्कुल नहीं चाहिए। जैसे बोलते क्रिस्टल क्लियर, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम सरल सीधा स्पष्ट आपकी रीति नीति, आपका सोच, ये लाना पड़ेगा। और इसके लिए ये सारे विषय, इसमें जैसे हमने पारंपरिक पशु चिकित्सा की मैंने थोड़ी बात की, क्योंकि आपका मुख्य विषय है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने पिछले 7-8 साल से वेटरनरी आयुर्वेद, पारंपरिक पशु चिकित्सा को पकड़ा है। ये तो बहुत ज्यादा महत्व का विषय है। ये जितने मैं मोटी पुस्तकें बता रहा हूँ, अभी मेरे पास उतना चूंकि बोझा बहुत हुआ था, इतनी मोटी पुस्तक हमारे स्वदेशी गायधनी ने तंजावुर से लेकर कि हमारे पारंपरिक पशु चिकित्सा जैसे शालीय शुरू हुई, हमने भी वहां पर
खुद एनडीडीबी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने, हमारे गुरुप्रसाद जी उसके अध्यक्ष वहाँ पर हमारे एनडीडीबी के गवर्निंग बोर्ड में, ये सब ने अभ्यास किया कि जैसे आज एमडीआर के केसेस गोवंश में आ रहे हैं, तो थनेला रोग के आ रहे हैं, या ब्रुसेलोसिस के आ रहे हैं, रिंडरपेस्ट के, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे लोग हमारे कार्य कर रहे हैं कि इन रोगों पर विजय पा रहे हैं। नहीं तो बहुत तामझाम वाला, बहुत अति आधुनिक ऐसा बना है, ध्यान में आया कि वहाँ के सारे सांड उससे ग्रसित, ये सरकारी विभाग की बात है। तो हमको पारंपरिक पशु चिकित्सा को बहुत आगे ले जाना पड़ेगा। इसमें हमने हमारे यहाँ पर जब खुरी का खुर पका मुंह पका, फुट एंड माउथ डिसीज, हमने धुआं किया, हमारे वैद्य हमारी टीम काम कर रही है, तो उसमें फिर थोड़ा जात्याधिकृत अर्क, गोमूत्र अर्क, ये जो है ये बहुत बड़ा एंटीबायोटिक भी, इससे उसको जख्म को धोया, पूरा ठीक। पूरे वहाँ के हमारे कुलपति अधिष्ठाता सब देखा पड़े, और ये कई वर्ष से चल रहा है कि हमारे यहाँ उसका प्रकोप लगभग 0 हो गया, 0। हमारे यहाँ पर एक बैल आया, उसका इतना जख्म था, लगभग 1.25 फीट, पूरा हाथ अंदर जा रहा है, आधी धोती एक बार लगती थी, जात्याधिकृत या गंधकृत लगा रहे, वो पूरी जख्म 2 से 2.5 महीने में। ये डॉक्टर अजय पोहरकर जी ने उसका शोध पत्र प्रस्तुत किया था। तो ये सब काम अलग अलग रोगों में, इनके यहाँ के कैलोरी जी, कुरकुरे जी, दक्षिण जी, बहुत सारे वैज्ञानिक ये सब काम में लगे रहे, क्योंकि नाम में कितना गिराऊंगा, बहुत सारे देश के, डॉक्टर कृष्ण मोदी हमारे रामचंद्रपुर मठ से, बहुत सारे तरह के सब काम इसमें कर रहे हैं। तो ये काम एक बहुत ऊंचाई पर गया है, इसको आगे ले जाएंगे तो हमारा उस, जिसको बोलते हैं टीकाकरण से लेके, टीके की बात एक संक्षिप्त में बता रहा हूँ, आपको थोड़ा अनुभव आना चाहिए क्या भारत की परंपरा रही। हमारे जो ये हैं दामजी भाई पटेल सूरत से, वो दामजी भाई पटेल, उन्होंने 8 नाती पोते हैं। दामजी भाई पटेल आज 70 के आसपास, 250-300 गोवंश, लगभग 500 लीटर से ज्यादा प्रतिदिन का दूध, उन्होंने अपने सारे बच्चों को गोमूत्र घुट्टी के रूप में चटाया जब उनका जन्म हुआ, सारे नाती पोते। एक का भी कोई टीकाकरण नहीं किया, बोले जीवन भर का, आजीवन का, आज तक कोई भी बड़ा वाला 20-21 साल का हुआ है, किसी को कभी अस्पताल झांकना नहीं पड़ा, बोले आजीवन का सारा टीकाकरण गोमूत्र चटाने से कंप्लीट। आप सारे का अभ्यास कर लीजिए, सारे की शारीरिक स्थिति। अब ये सब चीजें, इसमें एक आगे और बात है, उसका पिछली बार भी हमने, वो जरूरी बात है इसलिए बता रहा हूँ। हमारे परंपरा थी कि जब प्रसूति हो रही है माताओं बहनों को, तो हम गोमूत्र आधा या आधा कप या गोबर का, बहुत स्वस्थ देशी गाय का गोबर का रस, ये दोनों मिलाकर दे रहे, सामान्य प्रसूति हो। ब्लड प्रेशर के रोगियों को, गाय को पीठ को सहला रहे, 10-15 मिनट रोज कर रहे, 4-5 महीने में पूरा ब्लड प्रेशर नियंत्रण में आता है। ये सारे वैज्ञानिक कार्य हैं, इनको आप केवल हल्के से नहीं लें, इसके ऊपर बहुत बड़ी वैज्ञानिक सोच काम कर रही थी, वैज्ञानिक शोध हुए, इनमें बहुत सारे काम कर लिए हैं। तो इनको हम जितना आगे ले जाएंगे तो ग्रामीण व्यक्ति आनंद से और बिना, जिसको बोलते अंग्रेजी दखल के रहेगा, या जो अंग्रेजी चिकित्सा है उसकी जो आवश्यकता, और गोवंश को भी बहुत, जो टीकाकरण अनावश्यक बहुत सारा चलता है, और फिर बहुत बड़ा हवा हम खड़ा करते हैं, ऐसा रोग वैसा रोग, उसको भय से रखते। समाज को हम निर्भय बनाना है, भय से दूर करना है, साहस का परिचय, वहां भी साहस भरना है एक प्रकार से। तो हमको लोगों के अंदर आत्मविश्वास के माध्यम से, इसमें जितने काम हम आगे बढ़ाते जाएंगे, जितनी रोजगार की संभावनाएं इसमें असीमित रूप से आती जाएगी, तो हमारा ये सब कार्य बहुत विस्तार से, अभी ये जैसे आप देखिए क्या स्थितियां हैं, कुछ चीजें मुझे बताना आवश्यक है, इसलिए बता देता हूँ। अभी जो कोरिया के बहुत बार समाचार, बहुत बार आ जाके 2-3 दिन में आ जाता है, उत्तर कोरिया, वहाँ की स्थिति है अनाज नहीं तो बच्चे पका खा रहे हैं। ये 8-10 वर्ष से, अभी से नहीं, ये समाचार पत्र का है, हमने नहीं सुना, ये वास्तविक स्थिति है। चीन में बच्चों के भ्रूण का बाजार लगता है, ये कहीं कैंसर रोगी न बनाते टूथपेस्ट। ये देखिए, ये आपके लिए, हमारे लिए संदेश है, हाउ टू इंस्पायर इंडिया यूथ फॉर फार्मिंग, ये भी हमको करना है। तो ऐसे बहुत सारे काम करने हैं, और उसको भी जमीनी दृष्टि पर लाके हम जब रखेंगे, और उनके अंदर अब हम लोगों ने बहुत सारे काम इसके अंदर अलग अलग क्षेत्र में किए हैं, और बहुत सारे हम करने जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, गोबर से शिल्प बना है, ये गोबर की बहुत सारी चीजें हैं, ये बैल चालित कुछ उपकरण और बैल चालित और गोबर से कुछ चीजें। अभी सरकार के 9 संस्थाएं काम करती हैं। बैलों को तो हमने जैसे बस मरने के लिए मजबूर कर दिया, कि हमने ट्रैक्टर लिया है तो लगा बहुत आधुनिक शोध हो गया, वो जमीन कितनी कड़क कर रहा है, जमीन का माइक्रोफोरा सूक्ष्म जीवाणु कितने नष्ट कर रहा है, तो सब तो तमाशा है। अब बैल जब सामान्य ये करता है, और सामान्य हमारे यहाँ 70 से 80% औसत किसान है, एवरेज मार्जिन फार्मर, तो बैल आधारित बहुत अच्छे उपकरण हमारे शैलेंद्र सिंह ने बड़ा अच्छा काम किया उत्तर प्रदेश में। 4 बैल जोड़ी से 20 किलोवाट बिजली बना दी।
हम ऐसे कुछ प्रयोग देश में सफलता से आगे बढ़े हैं। कहीं पानी लिफ्टिंग, पानी कुएं से बोरवेल से निकाल रहे, बैलों को घुमा, चारा कटिंग मशीन चल रही है, कहीं दूसरे काम बैटरी चार्जिंग से लेकर। तो बैलों की उपयोगिता पर एक प्रकोष्ठ हमने प्रयास किया है। हमारे सब छोटे छोटे प्रयास है, क्योंकि हम बहुत छोटे सीमित स्तर में कार्यकर्ताओं की आर्थिक बहुत तरह की अड़चनों में फिर आपस में सबका थोड़ा मेल मिलाप सब जुटाना पड़ता है। तो हमको गोवंश के नस्ल के संवर्धन के प्रकोष्ठ, हमारे जैविक कृषि के प्रकोष्ठ, जो हमारे चारा जैसे हमने बताया कि झेंजुआ, कहीं हीरामन, उसके ऊपर गोचर विकास का प्रकोष्ठ, बैल चालित उपकरण का, इसके अच्छे श्रेष्ठ साहित्य, ये सब जो साहित्य है, इस तरह के साहित्य, इस तरह के अनुसंधान के, ये सब प्रकाशन कर रही है, ये अच्छी अच्छी अलग अलग भाषा में है, इसका प्रकोष्ठ। हमारी पारंपरिक पशु चिकित्सा, इसी तरह से हमारे जो ग्रामीण वैद्य की, ग्राम वैद्य की परंपरा थी, दादी माँ का बटुआ हम बोल रहे हैं, ये सारा उसके लिए वरदान है। तो ये सारी चीजें हमको खड़ी करनी पड़ेगी, और इसमें ज्यादा लोगों का सहभाग और ज्यादा लोगों को प्रशिक्षण, ऐसे 16-17 प्रकोष्ठ, और हमारा सबका समन्वय, इसका नेटवर्किंग, ये हमको करना बहुत आवश्यक है। और इस सब में आपका सहभाग, जैसे बोलते हैं एक बार किसी काम को पकड़ा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, हमारी निरंतरता, अंग्रेजी में बोलते हैं कंसिस्टेंसी। दूसरी होती है, दूसरी समस्या कॉम्प्लिसेंसी, कि हम अल्पकालिक, जैसा बोलते हैं कि थोड़ा सा कुछ कर लिया और उसमें संतुष्ट, अल्प संतुष्ट हो गए, इससे बाहर निकलना है। कि हमारी ये जब तक हम हमारे कार्य में, जैसे हम बोलते हैं विजयी भव, हमने संकल्प किया, हमारी जो परंपरा रही है कि इस राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाना, इस राष्ट्र को संगठित करना। हमारे मनुष्यों ने संदेश दिया, गाय हमें एकत्र ला सकती है, गाय ही हमें तारेगी। ये संदेशों को नीचे तक ले जाना, ये केवल संदेश नहीं थे, ये अमृत संदेश है, लेकिन इसको साकार करने के लिए खून पसीना एक करना पड़ेगा, सब कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा। अपना थोड़ा सा, जैसे बोलते हमारा अभी तक बहुत कुछ, अभी सबका मनोरंजन बंद है, अभी किसी के अंदर भी नहीं आ रहा है कि मैं कुछ कहीं पर्यटन के लिए, कहीं होटल में शनिवार रविवार के लिए, वीकेंड के लिए, सब बंद हो गया है, सब ताला लग गया है, तालाबंदी है। तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कि अब हम कुछ करेंगे समाज के लिए, कुछ आगे बढ़ेंगे, कि जो वंचित है, जो कभी इतनी दुर्घटनाएं देश में समाज में चल रही है, क्या क्या सब देख रहे हैं, तो ये पीड़ा से थोड़ा हम भी पीड़ित हों। हम रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद से लेकर इतनी सब परंपरा के धनी रहे हैं, कुछ असीमित हमारे यहाँ ऐसी, सुभाष चंद्र बोस से लेकर, जो भगत सिंह से लेकर, हमारे इतने सारे क्रांतिकारी, वो बोल रहे हैं कि हम लाएं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों से। ये संदेश वो जो दे रहे हैं, उनकी आत्मा हमको कुछ बता रही है, वो आपको आग्रह कर रही है कि हम भारत के वीर सबको, क्योंकि भारत वीरों का पुरुषार्थी हुआ देश है। वो केवल कल्पना में या कुछ किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बुलाव में डाल दिया, तो हमको खुद को छल कपट षड्यंत्र से बची, इस युग की त्रासदी है। लोग दुर्भाग्य से कहीं इसमें परेशान रहते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं अपनी कुछ कमियां, तो ये सबसे हमको बाहर निकलना है, हमको संघर्ष में आगे बढ़ना है। और हम इस सब में एक जबरदस्त श्रेष्ठ कार्य, जो गौशाला हम प्रयास कर रहे हैं तो सूचीबद्ध करने का, हमारे सारे आज हमने अधिकतम सबको संदेश देने का प्रयास किया, क्योंकि ये कोई हमारा महिमा, ये गोवंश का है महिमा। ये तो चूंकि इसका भूमिका करनी पड़ती है। आज हम लोग ये संदेश देते तो हमको भी मन में पीड़ा होती है, हमारे बहुत सारे जगह हमारे फोटो के साथ संदेश देना है, तो हमारी परंपरा नहीं। हमारे यहाँ तो बोला जाता है प्रसिद्धि परानुग, ये सब, लेकिन जब संदेश देना है, सब करना है, तो कुछ बाधाएं, कुछ चीजें तोड़नी पड़ेगी, कुछ सीमोल्लंघन करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें गोवंश की जो प्रतिष्ठा है, कि गोवंश की ज्ञान विज्ञान की जानकारी, ये लोगों में जो जैसे बोलते जानकारी का अभाव, ये समस्या थी, इससे बाहर निकलना, हम लोगों के घर तक, वहां तक ये सही स्पष्ट जानकारी, उसको विश्वास दिलाएं। अभी जैसे इस समय की स्थिति, ये धूप है, गोबर के कंडे से बनी हुई, अभी हमारे यहाँ गोबर से राल से धूप कर रहे हैं। अभी इन धूप का ऐसा परिणाम है कि ये धुआं अपने आप में एंटीवायरल है, क्योंकि हमने जब फुट एंड माउथ में देखा। अभी ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की जानकारी जब देंगे तो लोगों को फिर से अपनी चीजों का विश्वास है। आज हमारे यहाँ जब किसान आते हैं, हम बोलते हैं सूर्य को अर्घ्य क्यों दे रहे हैं, वो कोई पीपल की, बरगद की परिक्रमा, जो गाय की परिक्रमा क्यों कर रहे हैं, उनको पता चलता है कि हमारा आभा मंडल कितना प्रदीप हो रहा है। आज हमारे यहाँ कुछ प्रयोग चल रहे हैं कि गोबर की चिप मोबाइल में लगा, उसका अभ्यास करना है। अभी अभ्यास बहुत नहीं हुआ है, लेकिन ये ध्यान में आता है कि निश्चित रूप से, क्योंकि ऐसा ध्यान में आया कि कहीं जापान, कई जगह पर बना, बीआरसी में मुझे सुदर्शन जी के प्रयत्नों से हमारे कृष्णलाल जी ने प्रयास किया था कि जो रिएक्टर्स हैं उसमें एंटी रेडिएशन को, गोबर को लगा के ऐसा देखा कि उसमें इस अणु विकिरण को रोकने की क्षमता है। तो ऐसे बहुत सारे काम कहीं रुक के उसको आगे बढ़ाएंगे। ये सब कामों में हमारा जितना सहभाग बढ़ेगा, क्योंकि ये महासागर जैसा है, इसका भंडार जो गोवंश का है, ये असीमित बहुत बड़ा व्यापक विषय है।
लेकिन इसमें हमारी सबकी सहभागिता, इन सब में हमारा योगदान। पिछली बार भी हमने आग्रह किया था कि हमारे यहाँ हमारी जो परंपराएं रही, अभी बहुत लोग हम लोगों को आग्रह करते हैं कि जैसे हमारे यहाँ इतने श्रमिक जा रहे, अभी परसों हमारे बैद्यनाथ के सुरेश जी शर्मा जी ने बताया कि उनको थोड़ा कुछ खान पान उनके मन में, क्योंकि भारत का जो जिसको बोलते रग रग में सेवा भाव है। अब हमको देखना है कि गोवंश के प्रति हम कितने कृतज्ञ। हम नित्य गोसेवा हम ले रहे हैं, हमारी प्रवृत्ति शोषण की। हम आज हमारी गोवंश का दूध घट गया, लोगों में ये भ्रम हो गया कि भारतीय देशी गोवंश इसमें दूध नहीं होता है। अभी ब्राजील में हमारी गाय 35-40-45 लीटर, हम लोगों ने गुजरात में 29 लीटर की गाय। आज गोपाल जी के यहाँ 17-18 बछड़ी के बाद ये 18-20 लीटर दे रही। हम लोग 48 की गौशाला गए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे, हम लोग गांधीनगर गए माननीय अशोक जी सिंघल जी के साथ। उसके बाद हम गौशाला गए, राम स्वरूप जी और सदानंद जी साथ में। वहां बताया उन्होंने 17 बछड़े कांकरेज की गाय 20 लीटर दूध दे। ये समझ जितने लोग थे दिन में तारे दिख रहे, उनको लगा क्या बात है। हम लोग गुलबर्गा गए, हमारे काबरा जी उनके आपको बताया 27 साल की है। भारतीय गोवंश 27 साल तक जी रहा है, विदेशी गोवंश 5 साल, उसके अंदर मृत्यु दर ज्यादा है, उसके अंदर ब्रुसेलोसिस, जेंडरपेट फेलियर, कई तरह के भयंकर रोग हैं, वो बांझपन जल्दी आता है, वो इस वातावरण से तालमेल नहीं रखती, कितनी समस्याएं हैं। और उसको जैसे बहुत ठंडा पंखा है, हमने जिसको बोलते हैं विदेशी बहुल आया ऐसा संभाल के रखो। पीड़ा का घर है, परेशानी का घर है, उसको आपने थोप दिया, उसको गले में लगा दिया, ट्रैक्टर लोगों के गले में लगा दिया। आज ये सब परेशानी के, मेरे पास पेपर्स हैं पंजाब के किसान के 20-20 साल पहले के, बोले बैंक के अधिकारी जबरदस्ती मेरे को ट्रैक्टर ठेल दिया, ये 4 लाख का मेरे यहाँ घर पे खड़ा है और ये मेरे लिए बोझा बना। तो हमको ऐसी चीजों से दूर जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। हम किसान की जैसे बोलते हैं उसकी चप्पल में पैर डाल के उसकी क्या स्थिति है, उसकी क्या परेशानी है, उसको दूर करना है। उसके लिए आगे बढ़ेंगे तो हम इस देश का वहां से शुरुआत होगी, क्योंकि इतने साल से अब प्रकृति ने हमको संदेश दिया है कि जो किसान इतने दिन चला गया तो परेशानी में, उसको कोई उसके भाव मोल भाव उसकी कोई अच्छी स्थिति नहीं। वो कितने यानी जब हम सुनते हैं कि अभी तो शायद 3.5 लाख के ऊपर आत्महत्या की, 1,500 से 2,000 किसान प्रतिदिन खेती छोड़ना, आधे जिले लगभग पानी से संकट से जूझना, ये केवल इसकी वजह से। अभी हमारे सुभाष जी शर्मा है, बहुत अच्छा किसान, खेती का काम, वो बोले मैं इतना लाख लीटर पानी जमीन में डाल रहा हूँ और उनका कुएं का जल सब पुरानी जगह पर 50 फीट से बढ़ा दिया। अभी किसान जैविक खेती से सेंद्रीय खेती से कर पा रहा है। ये सब चीजें जब उसको बताएंगे उसको ध्यान में आएगा कि खेती उसके लिए उज्जवल भविष्य, उसके साथ गोवंश पालन, उसके साथ ये सारी चीजें, उसका कुपोषण भी नष्ट होगा, उसकी ये सारी चीजें वहीं उपलब्ध होगी और एक खुशहाल देश यानी आने वाले समय में बहुत जल्दी, यानी हम इसको समयबद्ध, हमारा थोड़ा सा जो जिसको बोलते हैं कि कार्यक्रम वो सुनियोजित होना चाहिए, जिसको बोलते हैं एक बहुत अच्छी योजना के साथ हम जैसे एक पेशेवर तरीके से कार्य करें और जल्दी क्षेत्रों में हर राज्य तक, वो अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी, अरुणाचल, कोई भी प्रदेश हो, कोई स्थान हमको छोड़ना नहीं है कि वहां तक ये बदलाव जितना जल्दी आएगा तो आने वाले 1-2 वर्ष में देश का चित्र, चूंकि अभी बहुत बड़े तरह के पैकेज, बहुत तरह की बातचीत और लोग परेशान रहते हैं। ऐसा लग रहा है कि समाज को जैसे हमको कुछ इनाम मिल जाएगा, लोगों की क्योंकि आदत पड़ गई, कहीं वो फ्री में अनाज, कहीं कुछ चीजें चल रही थी। अब ये सब कुछ होने वाला नहीं, भूल जाइए किसान को। और आपको सबने ध्यान देना है, अब हाथों से कमाई करनी है, हाथों को काम देना है, हर हाथ को काम देने की हमारे, और सही अर्थ में उसको कर्मठ बनाना है, कर्मयोगी बनाना है। तो ये सब प्रार्थनाएं हैं। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा समय का अतिक्रमण करना ठीक नहीं, लेकिन इन सब काम में आप सब जितने हैं, जहां तक संदेश गया है, अपने और परिचित मित्र होंगे, गोवंश के बारे में थोड़ा ज्यादा जिसको बोलते हैं संवेदनशील और देशी गोवंश तो प्रयास करें कि आप आपके क्षेत्र में जिस प्रदेश में आप हैं, क्योंकि स्वर्ण अक्षर हमारी हर देशी गोवंश के दूध में है, गोमूत्र में है, केवल एक विशेष नस्ल में ऐसा नहीं, हर प्रदेश की हर नस्ल बचानी पड़ेगी, उसका संवर्धन करना पड़ेगा और जो नुकसान किया उसकी नुकसान भरपाई करनी पड़ेगी। इतने सालों में हमने ध्यान नहीं दिया। हमने रोज नित्य गौ सेवा का संकल्प कि हम कुछ खिलाएं, चारा जैसे बोलते हैं, कुछ नहीं, शहर क्षेत्र में ककड़ी, गाजर, बहुत लोगों आदत पड़ जाती है, रोटी गाय को खिला रहा है, उसको 1-2 रोटी, घर की रोटी ठीक, लेकिन आप उसको कुछ गाजर, केला, जो भी उस समय का उपलब्ध आहार है, कच्चा आहार। ऐसा बताया कि गाय के दर्शन के सारे पाप, गाय की सारे ब्रह्मांड, गाय के चरणों की धूल मस्तक मिलेगी, सारे तीर्थों में शामिल। हम लोग, हमारा एक केंद्र विश्व हिंदू परिषद की परंपरा से, तो हमने प्रयास किया 1.25 करोड़ गौशाला बनाने।
तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। ये सब आप लोगों के सबके माध्यम से संभव होगा। इन सब में हमारी सबकी सहभागिता, आप लोग इसमें जैसे हमारा संपर्क बना रहे, केवल एक बोल दिया यहाँ तक सीमित नहीं है, यहाँ तक हमारा आदान प्रदान बढ़ जाए और कार्य यही प्रार्थना है। अधिक या थोड़ा सा क्षमा करेंगे और जो हमको करेंगे वो विज्ञान की govignyan.com वेबसाइट है और बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारा ठीक है। और जितना हम ज्ञान का ये आर्ष ज्ञान के परंपराएं साधन परंपराएं इसका चित्र बदल सकेंगे, ये विश्वास है। आप सबको नमस्कार। सुनील जी। आइए। हाँ सुनील जी, मैं राधेश्याम दीक्षित। इस सेशन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इसमें जो अभी अब तक जितना भी मैं जान पाया हूँ, क्योंकि मैं गोपालक भी कभी नहीं रहा, मैंने इसमें कोई शोध भी नहीं किया और उसका कोई द्रव्य का जो उत्पाद आप लोगों के माध्यम से कभी मिले तो मैंने थोड़ा बहुत कभी कभी सेवन किया, नियमित सेवक भी नहीं हूँ। लेकिन मुझे ये जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो बहुत अपील करती हैं। तो एक जर्नलिस्ट के तौर पर या एक सिटीजन के तौर पर मैंने जो एफर्ट्स किए हैं वो मुझे समझ में आ रहे हैं कि उसमें संभावनाएं अपार हैं। लेकिन अभी क्लिनिकल ट्रायल के जो आउटकम्स हैं, जैसे अभी आपने एक पुस्तक दिखाई थी कैंसर के रोगियों पर इसका प्रभाव, बहुत अच्छी पुस्तक है, लेकिन इसकी उपलब्धता या इसका कोई डिजिटल संस्करण में प्रामाणिक उपलब्धता अगर होगी तो विश्वास ज्यादा लोगों का बढ़ेगा। हमारे पास कई ऐसे लोग मिले जिनका काला मोतिया ठीक हो गया, कई लोग की बांझपन की समस्या थी वो सॉल्व हो गई, बहुत से लोग। बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं, आपको सारी चीजें ईमेल पे बहुत जल्दी आ जाएगी, बहुत भेज देंगे, तैयार है, आप निश्चिंत सब भेज देंगे। और तो एक दूसरी तो बात, वो हमें मिल जाए, आपको मिल जाए, इससे बड़ा प्रश्न ये है अगर हम क्या गो विज्ञान अनुसंधान संस्थान या इसका एक कॉमन हम नॉलेज पोर्टल रखें जिसमें ये सारा विषय कोई भी जाके वेरीफाई कर सके, या जिसको कोई चैलेंज करना वो कहे कि ये कॉमन प्लेस है जाके चेक करो, जैसे आपके पास बहुत से पेटेंट हैं। ऐसा है आपका नाम राधेश्याम जी और आप हमारे से 7-8 महीने से संपर्क में हैं और आप इंटरव्यू तक संपर्क रहता है, उसके बाद आपका संपर्क 0 हो जाता है। इससे आपको बाहर सुनिए मैं बहुत स्पष्टवादी हूँ, चिंता मत करिए, मुझे कहीं चिंता नहीं रहती है। आपको इसकी पहल करनी पड़ेगी और सारी चीजें उपलब्ध है, आपको ये लोगों को उपलब्ध करानी पड़ेगी, आपको इसका माध्यम बनना पड़ेगा और सब आपको करा देंगे। मैं आपसे संपर्क करा दूंगा हमारी मीडिया टीम से और वो आपको सब कराएगी और आप देश को समाज को सब आपको उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि आयोग के साथ दोनों बैठक में आप थे और तो इसको बहुत आगे ले जाना है, तो आप कर सकते हैं इसको, हम दे देंगे आप। आगे बोलिए, और कोई पूछना चाह रहे हैं? ये आवाज नहीं आ रही, इनको म्यूट किया शायद। और कोई बोलना चाह रहे तो बोलिए। और कोई बात करना चाह रहे हैं? यशपाल सर, आप कोऑर्डिनेट कीजिए। मुझे नहीं लगता और किसी का कोई भी क्वेश्चन है। मैं किसी का प्रश्न अभी नजर नहीं आ रहा है, तो मैं सर एक चीज पूछनी थी सर ये पूछना था, जैसे अभी अगर हम इंडिजिनस गाय को, सर आपने बहुत सारे जैसे इफेक्ट्स बताए और पॉजिटिविटी बताई, तो वो सब अच्छा है, लेकिन सर अगर मिल्क प्रोडक्शन के नजरिए से देखें तो उसमें क्या कहेंगे आप? मैंने 1 घंटे के बाद यदि आपको अभी भी मिल्क दिख रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये गोमूत्र हमने 25 साल जब काम कर रहा है संस्थान, तो 350 रुपए लीटर है। आपके देश में दूध कहाँ पर 350, जरा बता दीजिए मुझे सर। लेकिन उसके लिए हर जगह रिसोर्स नहीं है ना, मतलब ये है कि हर जगह चल रहा है। और भारतीय देशी गाय का दूध 200 रुपए लीटर गुजरात से जरा लाइन लगा के ले रहे हैं। भारतीय देशी गाय 7,000 रुपए किलो बिक रहा है। आपको थोड़ी आंखें खोल के देखना है, दोनों चीजें चल रही है। भारतीय देशी गाय दूध 18, 20, 25 लीटर होगी, गिर होगी, साहिवाल होगी, थारपारकर होगी, कहीं पर लाल कंधारी होगी, होगी, डांगी होगी, ये सब भी दूध में आगे बढ़ी पहले की कल्पना से। वेचूर जैसी भी 4-6 लीटर पे आ गई है। हमारी गौड़व 11-12 लीटर पे चल रही है। आप ये अंधेरे से बाहर आइए। आपकी देशी गाय जितना खा रही है उससे ज्यादा दूध दे रही है और विदेशी गाय आपके लिए खतरा है। और भारतीय गाय 25 साल में 15-20 साल तक दूध दे रही है, वो 5 साल भी नहीं देती है। आप इस भ्रम में दूर हो जाइए अभी और पूरा अपना लंबा सोच करिए जरा। जी सर, थैंक यू सर। लिमिटेड है, उसको सोच को बढ़ाइए जरा। हेलो, जय गोमाता जय गोपाल। भाई साहब, मैं गोवत्स अश्वनी हरिद्वार से। हाँ बोलिए अश्विनी जी। भाई साहब, जैसे भाई साहब ने कहा है, हमारे छोटा सा शहर है रुड़की, वहां पे 130 रुपए लीटर गोमाता का देसी गोवंश का दूध विक्रय हो रहा है और लाइन लगा के हो रहा है। जब से कोरोना का ये चला है तब से 200 रुपए लीटर तक की डिमांड है।
ये अश्विनी जी हरिद्वार में हड्डी का काम करते हैं, कृष्णा गौशाला भी देखते हैं, काफी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। अश्विनी जी बताइए, आगे बताइए। और अभी अभी हमने क्या किया, हमने जैविक गन्ने का उसको फ्रीजिंग किया और उसको लोगों को दिया जिनको शुगर था, जो शुगर में चीनी वीनी नहीं ले सकते थे, उनको हमने कहा आप जब चाय बनाते हैं तो इसको जैविक गन्ने का जो हमने बर्फ की तरह से जमाया था, थोड़ी सी डली, उसको आप डालिए। तो लोगों की इतनी डिमांड आई कि हमारे पास अब गन्ना ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, भारतीय देसी गौमाता बहुत कुछ अपार संभावना है और इसको करना पड़ेगा, सोचने से कुछ नहीं होगा। नहीं, और आपको भी आग्रह है अश्विनी जी कि आप ये सब लिखते जाइए, तो हमारे को भेजिए। बोलिए बोलिए मनीष जी, बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं जबलपुर से, अनुभव बताइए। हाँ, जय श्री राम, बोलिए। हमारे यहाँ तो 7-8 गाय हैं लगभग, और हमारे यहाँ जो भी भाई साहब ने दूध की चर्चा की, तो हमारे यहाँ लगभग 8 गाय है और प्रत्येक गाय लगभग 9 महीने लगती है, और प्रत्येक गाय का दूध लगभग 3 लीटर के आसपास है। तो अगर आप इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो दूध की मात्रा काफी अधिक हो जाती है। भोजन भी अति निम्न है, व्यवस्थाएं भी बहुत कम है। और हम गौमूत्र की अगर हम बात करें तो प्रत्येक मतलब वर्ष हम लगभग 1000 से 1500 गौमूत्र की बोतलें जो है भाई साहब को तो है जा और ये पूरे देश के अनुभव है। म्यूट कर दीजिए, बोलिए। समय हो रहा है 1 घंटा से ऊपर, 100 घंटा। और कोई को बोलना है, थोड़ा अनम्यूट कर दीजिए, नहीं तो उनको बोलने दीजिए मनीष जी को। और कोई बोलना चाहते हैं, कोई प्रश्नोत्तर रखना चाहते हैं तो बात करिए। अपने अनुभव भी कोई बता सकते हैं, बहुत सारे हमारे श्रोतागण सुन रहे होंगे तो अनुभव बता सकते हैं। सुनील जी, हाँ बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर रामस्वरूप चौहान जी का छात्र हूँ। बहुत अच्छी बात है। और पड़ेगा मैं उनका जो शोध पत्र एक पुस्तिका निकलती है, जर्नल ऑफ इम्यूनोलॉजी इम्यूनोपैथोलॉजी, काउपैथी भी वो निकालते हैं, और मैंने उनके साथ खुद अध्ययन किया है कुछ विषयों पर, और जिसमें एंटीऑक्सीडेंट की जो आपने एक बातचीत की थी, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे हमारी स्टडी के, और जिसको हमने प्रकाशित भी किया, वो खाली सिर्फ बातचीत में नहीं था, उसके जो तथ्य सामने आए थे उनको हमने एक जर्नल में प्रकाशित भी किया। क्योंकि अभी मैं IVRI जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, उसमें मैं प्रधान वैज्ञानिक के पद पर हूँ, और हमारे यहाँ पर भी काफी एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और जो डिफरेंट शोध है उस पे हम सब लगे हुए हैं, और हमें कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। और मेरे विचार में आपके संस्थान तक और विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर उनको डिस्कस भी किया गया है हमारे अधिकारियों द्वारा। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ, जितना भी मेरा संपर्क हुआ है डॉक्टर चौहान के साथ, हमेशा मैंने इसको एक उच्चतम श्रेणी में ही रखा है, और इसकी जरूरत है कि इसका व्याख्यान और इसका जितना दूर तक हम संपर्क लोगों तक ले जाएंगे, उतना ही अधिक इसका लाभ हमें मिल पाएगा। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। और इसके लिए आपको थोड़ा प्रयास करें, जो हमारे कृषि चिकित्सा संस्थान है वहां पर साहित्य रहे, युवाओं को मिले, ये साहित्य सबको उपलब्ध हो। और जैसे उन्होंने बताया हमारे राधेश्याम जी ने, पोर्टल जो भी करना है, जानकारी का आदान प्रदान, जानकारी का अभाव, ये समस्या खत्म करें, तो जल्दी से जल्दी ले जाए। हमारे यहाँ पर पूरा इसका एक विषय पर पूरा अनुसंधान चल रहा है, गोमूत्र के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। हाँ जी, और हमने इसका संकलन किया है, ये किसी को आपको बता दूं कि गोमूत्र पर केवल ये आप देख सकते हैं, ये 2017 की थी, ये पूरा गोमूत्र केवल गोमूत्र पर है सारा, ये काम आपको आगे ले जाने पड़ेंगे। और सारा इसका पूरा समय, जैसे बोलते हैं, अपडेटेड पूरी जानकारी अभी तक जानकारी, ये हमको करना पड़ेगा। सुनील जी बोलिए। सुनील जी, भारतीय पशु चिकित्सा संघ का एक निवेदन है। हाँ जी बताइए। अभी एक हमारे डॉक्टर संदीप ने भी सवाल पूछा था कि दुग्ध उत्पादन की उपलब्धता,
तो दुग्ध उत्पादन तो आज के दिन तो इतना ज्यादा उपलब्ध है कि उसकी रसायन का है आधे से ज्यादा, 50-60% से ज्यादा रसायन का है, भारत सरकार स्वीकार करती है। वो रासायनिक भी है और फिर भी जो दूध है वो भी 18 से 20 रुपए किलो बिक रहा है। और हमारा एक आम पशु चिकित्सक के तौर पे एक निवेदन है कि जो देशी गोवंश के ऊपर विभिन्न प्रकोष्ठ संघ के अन्य संगठनों के कार्य कर रहे हैं, उनको राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत इंटरवीन करना पड़ेगा कि हम IVF एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इतनी उत्कृष्ट की बजाय जो अपनी सामान्य गोवंश का प्रोपेगेशन है, संवर्धन है, उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो ये IVF एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी विदेशी वीर्य सीमन जो लेने का षड्यंत्र है, ये तो एक देशी गोवंश के साथ कई दशकों से हो रहा है। ये बहुत बड़ा विश्वासघात है, इसको तत्काल बंद करना पड़ेगा। बहुत सही बात है आपकी। और ये सारी जो टीकाकरण से बहुत सारी चीजें हैं, ये सबका भारतीयकरण करना पड़ेगा, इसको पूरा हटाना पड़ेगा और इसकी बारीकियों से जो भी हमारी समस्याएं तत्काल निरस्त करना पड़ेगा। इसमें बहुत कमर कस के और खास करके हमारे वरिष्ठ पदों के पशु चिकित्सक वो अपने अंतरात्मा की आवाज सुनकर, कि वो केवल हमारा मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं, हमारे अधिकारी कुछ बोल रहे हैं, हमारा वरिष्ठ कुछ बोल रहा है और वो गलत सलत चीजें थोप रहे हैं, उसको तत्काल रोकना पड़ेगा। और इसके लिए हमारे समाज को खड़ा करना पड़ेगा और समाज में बहुत जबरदस्त जन जागृति लानी पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और बताइए, अब हमको भारतीय पशु चिकित्सक संघ हमारे साथ अभिन्न रूप से, और आपने सूची बनाई है, हमको हर जिले तक अच्छे पशु चिकित्सक अच्छी गौशालाओं से जोड़ना और उनका इंटरलिंकिंग, और उन्होंने काम में विशेष ध्यान देना और वहां की नस्ल, वहां का सारा संवर्धन, और वो काम गांव तक जाए, इसका नेटवर्किंग बहुत ठीक ढंग से, कि हमारे ग्राम विकास की व्यवस्था है, हमारी बाकी संस्थाएं, ये सब काम हम सब मिलकर ले जाएंगे तो निश्चित बहुत जल्दी इसमें काम में प्रगति आ जाएगी। और हमारी आपस की स्पष्टता बहुत जरूरी है, हमारा आपस का विरोधाभास नष्ट करना पड़ेगा। और इधर उधर की जो जिसको, और खास करके अभी जैसा उन्होंने एक उदाहरण दिया कि दूध, तो दिमाग पर से दूध को थोड़ा पीछे ले जाकर गोबर गोमूत्र उसके ऊपर सुपर इम्पोज करना पड़ेगा कि गोबर गोमूत्र की वरीयता है, दूध को हमने दिया वरीयता, दूध कोई बुरा नहीं है, लेकिन दूध तीसरे नंबर पर, तीसरे पायदान पर है। गोबर गोमूत्र की वरीयता लोगों के दिमाग में डालेंगे तो काफी ठीक होते जाएगा। और जब तक गोबर गोमूत्र दे रहा, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि गोवंश अनुपयोगी हो नहीं सकता, अनप्रोडक्टिव हो नहीं सकता, तो हमको गोबर गोमूत्र को समझना है। 2005 का सुप्रीम कोर्ट का 7 बेंच लाहौटी जी का उनका जजमेंट है, निर्णय बहुत महत्व का है। बताइए, और किसी को कुछ पूछना, कुछ बोलना है? डॉक्टर मलिक जी कुछ बोलना चाहेंगे तो बोलिए। प्रवीण जी, मलिक सुन रहे हैं क्या? हमारे कुछ ओम प्रकाश जी को भी हमने भेजा है, वैसे तो हमारे चौधरी जी जो जीव जंतु बोर्ड के अध्यक्ष हैं, हमारे बहुत वरिष्ठ जन हैं, हमारे वल्लभ भाई है, हितेश जी, बहुत सारे हमारे वैद्य लोग हैं, जय कृष्णा से लेकर सारे, कोई भी हमारे वैज्ञानिक कुछ भी बात करना चाहेंगे तो आप बात कर सकते, बता सकते। डॉक्टर कादियान कुछ कहना चाहेंगे अभी? मेरा तो यही निवेदन है कि सुनील जी, आप अपने इस पुनीत कार्य में प्रगति करें। भारतीय पशु चिकित्सा संघ आपके साथ है और कोशिश ये करेंगे कि उपयोगी योजनाएं जो आम स्तर तक आने की हैं, उनको राष्ट्रीय गोकुल मिशन का एक हिस्सा बनाया जाए। विदेशी ना तो माँ अच्छी है और ना विदेशी मौसी अच्छी है। हमें देशी गोवंश का संवर्धन भी करना है और इसी के सहारे आगे बढ़ा जा सकता है। कोशिश आप लोगों की भी ये रहे कि जो उत्कृष्ट वैज्ञानिक है ना, जो ये विदेशी सोच लेके आते हैं, इनके विदेशी दौरे, इनकी विदेशी संरचनाएं ये बंद की जाए तुरंत। हमारा देशी गोवंश अपने आप में एक बहुत ही उत्कृष्ट प्रकल्प है और इसको बढ़ाया जाए। आपसे भी अनुरोध है, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग से अनुरोध है और भारतीय आम पशु चिकित्सक आपके साथ है, ऐसा हमारा निवेदन है। और आज आप आए, हमें अनुग्रहित किया आपने, और बार बार हम चाहेंगे कि एक आम पशु चिकित्सक आम देसी गौ माता के साथ जुड़े
और एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि ये देसी जो हमारी गौ माता है, गोवंश है, इसमें और विदेशी मौसी में कह लो, वो तो मौसी भी नहीं है। बॉस इंडिकस और बॉस टॉरस में बहुत फर्क है, वैज्ञानिक सिद्ध कर चुके हैं। तो इस बॉस टॉरस को बॉस इंडिकस से अलग कर ये देसी पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। ये देखिए, ये विदेशी लोगों ने निकाले, ब्राजील वालों ने 70 से ज्यादा पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमारे गोवंश के बारे में। ये हमारे पशु वैज्ञानिक जो हमारे संदीप जी बाकी है, उसको पढ़ ले, मेरे से मंगा ले, आप देख लीजिए, सारी आंखें खुल जाएगी। और ये कोई संप्रदाय का या धर्म विशेष का विषय ये भी जानने आ जाए। ये गोवंश हमारी सृष्टि के संतुलन का विज्ञान है, गोविज्ञान। ठीक है, किसी वर्ग विशेष का विषय नहीं है, ये पूरी मानवता का विषय है, ये भी स्पष्ट हो जाए। नहीं, आपने सत्य कहा ना, आप जो बेसारा गोवंश कहलाया जा रहा है, उसका हमारा देशी गोवंश तो 10 से 20% ही है। 80% तो उपयोगी, जो आपने कहा 4-5 साल दूध देने के पश्चात उसके बाद वो निराश्रित हो जाता है, वो गोवंश है। और उससे तो जितना जल्दी छुटकारा पाएंगे इस सोच से, इतना ही देश जल्दी इस समस्या से बाहर निकलेगा, निजात पा सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है आप। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। जी मैं संदीप कुड़े हूँ पुणे से। बोलिए संदीप जी, आप पीएचडी करने वाले, बताइए क्या चल रहा है। तो मैंने आपसे पिछले कुछ दिनों पहले वार्तालाप की थी। तो मैं BE MBA फाइनेंस हूँ। तो मुझे जैसे आप जैसे वक्ताओं से सुन के इस विषय में रुचि हुई और मैं धीरे धीरे लॉजिकली इस चीज को खोजने लगा कि किस तरह से गौ माता रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल इकोनॉमी का बेस बन सकती है। तो मैं PhD के लिए भी यही विषय चुनना चाह रहा था। और इसके अलावा हमने कुछ गौशालाओं को साथ में लेके कुछ प्रयोग भी करने चाहिए, जैसे डोनेशन, कम से कम डोनेशन आधारित गौशाला हो और उसको गो प्रोजेक्ट के तौर पे आगे ले जाए। तो कोरोना काल में, लॉकडाउन के काल में हमने देखा कि किसी को जन जागरण किए बिना लोगों ने, बाकी प्रोडक्ट तो हाई क्वालिटी है अपने गौमूत्र, अर्क वगैरह, पर गौरी जो है, जो कंडे होते हैं, तो कंडों की खपत बहुत ज्यादा हुई और लगभग 50% हमारा ब्रेक इवन पॉइंट उसी में अचीव हो गया। तो लोगों में जन जागरण पहले से है कि इस चीज की जरूरत है। तो मेरा सवाल, अभी वेटरनरी साइंस के सभी डॉक्टर्स एसोसिएशन यहाँ पे है, तो सुनील जी मुझे दिक्कत यह है कि हम वहाँ पे देसी गाय की अपना लातूर की जो जाति है देवनी, वो संभाल रहे हैं, पर हमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से तो विरोधी है। पर ठीक है, हम इस हद तक उसको संभाल सकते हैं कि उसके लिए जो सीमेंट की व्यवस्था है या उस बुल को संभाला जाए, पर हर किसी किसान को ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें हर जगह दिक्कत आती है कि हर जगह गिर का सीमेंट ही मिलता है, छोटे छोटे गांव कस्बों में, रूरल जगह पे। तो वेटरनरी साइंस के डॉक्टर एसोसिएशन से ये है कि आपका इस विषय में कुछ अध्ययन है क्या, कि हर एक जाति को संभालने के लिए, उसे रखने के लिए, कुछ संवर्धन के लिए कुछ किया जा सकता है क्या? निश्चित रूप से देखिए, आपने बहुत सही बताया है। वास्तव में हर प्रजाति के लिए अब हमको व्यवस्था वैसे भी करनी है, और संयोग से अभी उसमें समाज भी काफी जागरूक हो गया है, और बहुत जगह पर उन प्रजाति के सांड का भी, अब जैसे रामचंद्रपुर मठ ने पहल की तो 32 नस्ल वहां पर है जी। हमारे काट सिद्धि स्वामी जी पूरा प्रयास कर रहे हैं, हमारे पूज्य गोविंद देव जी, बहुत सारे हमारे साधु संजन भी बहुत सक्रियता से वहां पे 16-17 नस्ल वहां पर आ गई कोल्हापुर में, कनेरी मठ में। तो हमारे पास अब अलग अलग स्थानों पर बहुत लोग अच्छी नस्ल के सांड रख रहे हैं, और उसके लिए हम ऐसा आपस में इंटरलिंकिंग की वो सांड उसी जगह पर उपलब्ध हो, उसके नजदीक उपलब्ध हो, और ये प्रयास हम सब करेंगे तो जल्दी जल्दी उस क्षेत्र में वहां की स्थानीय प्रजाति जो पहले से इतने वर्षों से थी उसको फिर से पुनर्स्थापित कर सकते। इसमें थोड़ा अपने को आपस में जैसे समन्वय और जानकारी, क्योंकि बहुत बार नजदीक में कोई होता है, हमको पता नहीं रहता है कि किसके पास सांड किसके पास, तो ये जानकारी थोड़ा आदान प्रदान बढ़ाएंगे तो आपके पास, और फिर अच्छे पशु वैज्ञानिक उसमें भी रहे, तो ये चीजें संभव हो जाएगी कि आपको बिना इंजेक्शन, बिना इसके, और हम सांड के द्वारा भी आगे काम शुरू कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। सुनील जी, एक निवेदन है, बीच में आपको रोक रहा हूँ। हाँ बोलिए। सुनील जी, 3-4 दिन पहले से एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, टीवी पे बहुत ज्यादा। अच्छा। एक बैल जोड़ा हुआ है और दूसरी तरफ एक किसान जोड़ा हुआ है। किसान उसको लेके जा रहा है।
आपने भी देखा होगा। देखा मैंने, एक बार देखा मैंने। पंजाब, हरियाणा, जिस प्रदेश से मैं आता हूँ, हाँ वहाँ जी, इतना ज्यादा गोवंश फालतू है, नंदी इतने ज्यादा हैं हाँ जी। कि उनको मध्य प्रदेश में जैसे उस किसान की व्यथा बताई गई कि 15,000 का 5,000 में बेच दिया गया, तो आपका राष्ट्रीय कामधेनु आयोग या आपका जीव जंतु कल्याण बोर्ड हरियाणा के प्रदेश से ये जो नंदी हैं इनको मध्य प्रदेश में तुरंत पहुंचाने की व्यवस्था की जा सकती है। तो ये आपका बिल्कुल सही है कि अभी एक्चुअली आप जो आयोग है बाकी बात कर रहे हैं, अभी तो मैं बहुत स्पष्ट बोल देता हूं कि आयोग वास्तव में शुरुआत से उतना सक्रिय जितना होना चाहिए वो नहीं रहा है, भी नहीं भी बहुत ज्यादा। हमको समाज पर ही केंद्रित होकर और इस तरह की जो स्थितियां बता रहे हैं, हमने जैसे मध्य प्रदेश गुजरात में ऐसा प्रयास हुआ था, आयोग जब वल्लभ भाई उसमें अध्यक्ष थे, तो बहुत सारे बैल जोड़ियां आदिवासी लोगों को निःशुल्क दी गई। तो हमारे पास ये जो सरप्लस कहीं पर ज्यादा है कहीं पर आवश्यकता है, उसकी कुछ जुगाड़, उसका प्रयास हम जीव जंतु को कोई ना कोई माध्यम से करेंगे तो वहां पर संतुलन भी ठीक हो जाएगा और वहां जो बैल पालन की प्रवृत्ति उसको बढ़ावा मिलेगा। और यही इन प्रदेशों में भी जब हम इन बैल चालित उपकर बाकी चीजें करेंगे तो ये इस जगह पर भी वो जो आपको लग रहा है कि जो निराश्रित इधर उधर घूम रहा है, उस बेसहारा गोवंश की भी कुछ व्यवस्था हम वहां पर भी कर पाएंगे। ये थोड़ा हमको आपस में वास्तव में एक अच्छा समन्वित कार्यक्रम चलाएंगे और समाज के आधार पर ज्यादा जल्दी बढ़ जाएंगे। सरकार का हम प्रयास पूरा रहेगा कि इसमें हम कैसा सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे संजीदा वैज्ञानिक, अच्छे अधिकारी उसमें ध्यान दे रहे हैं, उसको बढ़ाएंगे। और प्रयास तो है क्योंकि उनका एक वो तो बोलते हैं, हमारे चौधरी जी ने हमको बोल दिया एक बार कि हमारे पास 10,000 करोड़ हम इसके ऊपर खर्च करने का, कि निराश्रित गोवंश है जो स्ट्रे कैटल मैनेजमेंट बोलिए, तो जो ड्राई डेयरी यूनिट्स बोलते हैं जैसे हमारी यूनिट को बोल रहे हैं, तो ये प्रयास को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से इसी तरफ ध्यान देना है और स्थान स्थान पर जो पशु वैज्ञानिक अपने अपने स्थान पर प्रयास करेंगे तो इसका कुछ वहां हल निकलते जाएगा। धन्यवाद। मुझे लगता है कि समय काफी हमने लिया है, थोड़ा अगली बार के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा समय लेंगे तो अतिक्रमण हो जाएगा। यशपाल जी आप देख लीजिए, या तो पुणे जाएंगे कि आपसे फिर निवेदन करें और आप किसी अच्छे विषय को लेकर फिर हमें, बहुत सारे आपने जो पॉइंट्स थे बहुत क्लियर किए और मेरा मानना है कि काफी सारे लोगों को काफी क्लियरिटी आई भी होगी और जिसको लेकर हम अपने क्षेत्र में इसका फैलाव भी करेंगे, बातचीत जारी रखेंगे। मैं सबसे पहले धन्यवाद आज के माननीय श्री, आज के जो हमारे स्पीकर हैं उनका करना चाहूंगा कि उन्होंने समय निकाला। हमारे इंडियन वेटनरी एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर चिरंतन कादियान, जिन्होंने ये कार्यक्रम शुरू करवाया और अभी तक लगभग हम 10 व्याख्यान विभिन्न एक्सपर्ट से करवा चुके हैं जो कि डिफरेंट पशु विज्ञान के ऊपर ही केंद्रित हैं, जिससे कैसे न कैसे सभी का लाभ हो। जितने भी आज पार्टिसिपेंट्स इस कार्यक्रम से जुड़े, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारे पूना से जो डॉक्टर सोनट के उमेश बालाजी हैं, डॉक्टर अजय बोरकर हैं, डॉक्टर मंगेश जिन्होंने इस कार्यक्रम को पूरा संभाला हुआ है, मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि सभी को आज के इस कार्यक्रम से कुछ प्रेरणा मिली होगी और इस एरिया में हम काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। So, Dr. Umesh, should we close? Okay. Dr. Umesh, should we close the meeting?